اردو ناولز پلیٹ فارم موسٹ رومانٹک ناول قبول ہے عشق تیرا از قلم پری خان۔ ایپیسوڈ 6۔ گڈ مارننگ ماما، گڈ مارننگ پاپا۔ بیلا ڈائننگ ٹیبل پر اپنی کرسی سنبھالتے ہوئے مسکرا بولی۔ گڈ مارننگ شہزادی، میری شہزادی آج بہت خوش لگ رہی ہے، کیا بات ہے؟ مسٹر ارسلان بیلا کو خوش دیکھ کر بولے۔ آج ایرا کی برتھ ڈے ہے، اسی لیے میں بہت خوش ہوں۔ ارسلان اپنی بیٹی کی طرف دیکھ مسکرائے اور ناشتہ کرنے لگے۔ بیلا ناشتہ کرنے کے بعد واپس اپنے کمرے میں گئی، اپنی ڈریس اور کچھ ضروری سامان لیے باہر آئی۔ ماما میں جا رہی ہوں۔ اچھا ٹھیک ہے، محتاط رہنا، گاڑی آہستہ چلانا اور ڈھیر سارا انجوائے کرنا۔ بیلا اپنی ماں کی باتیں سنے مسکرائی اور سر ہلائے گھر سے باہر چلی گئی۔ بیٹا تم ٹھیک ہو؟ رات کو نیند اچھی آئی تھی؟ جی ماما میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ فکر نہ کریں۔ فکر کیسے نہ کروں، اتنے سالوں بعد واپس آئے ہو، فکر تو ہوگی۔ ماما میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ کے ہوتے ہوئے مجھے کچھ ہو سکتا ہے؟ عاقل مسکرا کر بولا۔ پاپا ایرا کی برتھ ڈے پارٹی کی ارینجمنٹ کیسی جا رہی ہیں؟ پرفیکٹ جا رہی ہیں، سب تیاری تقریباً ہو گئی ہے۔ آر ایس اور اس کی فیملی بھی شام کو آ جائیں گے۔ اور میری پیاری بیٹی کی دوست کب آئے گی؟ سالار اپنے سامنے بیٹھی ناشتہ کر رہی ایرا سے پوچھتے ہوئے اس کی جانب دیکھنے لگے۔ وہ بس آتی ہی ہوگی، آج میں اسے تیار کروں گی۔ میں نے اس کے لیے ایک بہت ہی زبردست ڈریس بنوایا ہے، اب اسے بھی ایک ہم سفر مل جانا چاہیے۔ دیکھنا آج میں اسے ایسا تیار کروں گی، پارٹی میں آنے والے مہمان اسے دیکھتے رہ جائیں گے، اس پر سے اپنی نظریں ہٹانا مشکل ہو جائے گا ان کے لیے۔ ایرا آغر کی جانب دیکھے بولی۔ آغر اپنا ناشتہ چھوڑے اس کی جانب دیکھنے لگا۔ ایرا اس کے دیکھنے پر ہلکا سا مسکرائی۔ ایرا تم اس کی معصوم طبیعت کو خراب مت کرو، اسے اتنا تیار کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ تمہاری برتھ ڈے پارٹی ہے، اس کی نہیں۔ آغر سخت لہجے میں بولا۔ او بھائی، ایسے موقع پر تو تیار ہوا جاتا ہے۔ بیلا 22 سال کی ہو گئی ہے، کیا آپ کو نہیں لگتا اب اس کی شادی ہو جانی چاہیے؟ اسے بھی تو کوئی پیار کرنے والا ملنا چاہیے۔ اسے ابھی کسی کی ضرورت نہیں ہے، وہ ابھی بچی ہے اور بہت معصوم بھی۔ اتنی جلدی کیا ہے اس کی شادی کی؟ کیا پتہ لڑکا کیسا ہو، اگر لڑکا اچھا نہ ہوا، اگر وہ لڑکا بیلا کے پیسے سے محبت کرنے والا ہوا تو بیلا کی زندگی خراب ہو جائے گی۔ آغر غصے سے بولا۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں بھائی، سارے لڑکے اچھے نہیں ہوتے۔ اسے پہلے بھی بہت تکلیف ہوئی تھی جب اس کے بچپن کے پیار نے اس کے سامنے کسی دوسری لڑکی کو پرپوز کیا تھا۔ ایرا سخت اور ناگوار لہجے میں بولی۔ بیلا کس سے محبت کرتی تھی؟ وہ تب سے اس شخص سے محبت کرتی تھی جب سے اس نے محبت کا مطلب جانا تھا، لیکن اس نے کبھی اپنی محبت کا اقرار نہیں کیا۔ اسے لگتا تھا وہ لڑکا بھی اسے پیار کرتا ہے۔ اس لڑکے نے ہمیشہ اس کی حفاظت کی، لیکن ایک دن اس نے اس کی آنکھوں کے سامنے کسی اور کو پرپوز کر دیا۔ ایرا بتائے درد سے آنکھیں میچ گئی۔ یہ سن کر آغر غصے سے آگ بگولا ہو گیا۔ کون ہے وہ کمینہ؟ آپ کیوں اس کے بارے میں پوچھ رہے ہیں؟ اس کی ہمت کیسے ہوئی میری گڑیا کو تکلیف دینے کی؟ اسے تو میں جان سے مار دوں گا۔ غصے سے آغر کی آنکھیں سرخ ہو گئیں۔ آغر کی حالت بدلتی دیکھ ایرا بھی ایک پل کو خوفزدہ ہوئی۔ ایرا کو آج پکا یقین ہو گیا تھا کہ اس کا بھائی بھی بیلا سے محبت کرتا ہے، وہ بھی جنونی، لیکن اسے اپنے بھائی کو یہ احساس دلانے کی ضرورت تھی کہ وہ بیلا سے شدت والی محبت کرتا ہے۔ آپ ایسا ریئیکٹ کیوں کر رہے ہیں جیسے بیلا آپ کی بیوی یا منگیتر ہے؟ وہ جیسے چاہے اپنے لیے پسند کر سکتی ہے۔ نہیں، آغر ایک دم چلایا۔ نہیں، وہ ایسا نہیں کر سکتی۔ کیوں نہیں کر سکتی؟ کیونکہ وہ میری ہے۔ آغر کہے خاموش ہو گیا۔ ہاں بھائی، خاموش کیوں ہو گئے؟ وہ ہماری چاچو کی بیٹی ہے، اس حوالے سے میری بھی کچھ ذمہ داری ہے۔ ٹھیک ہے، وہ ہمارے چاچو کی بیٹی ہے، اس طرح تو وہ آپ کی بہن ہوئی۔ ایرا دانت پیستے ہوئے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے بولی۔ لفظ بہن سن کر آغر غصے سے کرسی سے اٹھا۔ وہ بہن نہیں ہے میری، تو پھر وہ کون ہے آپ کی؟ ایرا امید بھری نظروں سے اپنے بھائی کو دیکھنے لگی۔ آغر اس پر ایک نظر ڈالے اس کی بات کا جواب دیے بنا ہی وہاں سے چلا گیا۔ ایرا بھی سرد آہ بھرے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ پیچھے سالار اور کلثوم ابھی تک صدمے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ان دونوں کو کیا ہوا ہے؟ کلثوم پریشانی سے سالار کی جانب دیکھنے لگی۔ شاید ان کے درمیان کچھ چل رہا ہے، تم فکر نہ کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا، وہ خود ہی اپنے معاملے کو حل کر لیں گے۔ کلثوم سر ہلائے اس کی جانب دیکھنے لگی۔ آغر اپنے کمرے میں ادھر ادھر ٹہل رہا تھا، اس کا سینہ جل رہا تھا، دل انتہا کا گھبرا رہا تھا۔ بے چین سا آغر کمرے میں ٹہلتے ہوئے ایرا کی باتیں سوچ رہا تھا۔ ایرا کی باتیں اس کے ذہن میں مسلسل گردش کر رہی تھیں۔ اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے آج پاگل ہو جائے گا۔ وہ اس شخص سے پیار کرتی تھی۔ ایرا کے الفاظ بار بار اسے اپنے کانوں میں سنائی دے رہے تھے۔ آہ آہ، آغر سر کے بال ہاتھوں میں لیے زور سے چلایا۔ وہ کون ہے؟ کمینے کی ہمت کیسے ہوئی اس کے قریب آنے کی؟ ہمت کیسے ہوئی؟
ایک منٹ، ایرا نے بتایا کہ بیلا اسے بچپن سے پیار کرتی تھی، مطلب کہ وہ اپنے اسکول کے زمانے میں ملے تھے۔ وہ کب ملے، کہاں ملے، میں اس وقت کیا کر رہا تھا، میں اسے کیسے محسوس نہیں کر سکا؟ کیا اس نے اسے چھوا؟ کیا اس نے میری گڑیا کو چھوا؟ نہیں، کوئی اسے نہیں چھو سکتا، وہ میری ہے، صرف میری، میں سب کو تباہ کر دوں گا۔ بے شک تم نے میری گڑیا کو چھوڑ دیا ہو، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں تمہیں اتنی آسانی سے چھوڑ دوں گا۔ تمہیں میری گڑیا کے قریب آنے کی قیمت ادا کرنی پڑے گی۔ آخر غصے سے چیخا۔ اگر وہ خود اس کے ساتھ رہنا چاہے گی تو تم کیا کرو گے مسٹر آگر افندی؟ اگر وہ تمہیں چھوڑ کر اس کے ساتھ چلی گئی تو؟ آگر کے اندر سے آواز آئی، یہ اس کے وجود کی آواز تھی، روح کی آواز۔ نہیں، ایسا نہیں ہوگا، وہ صرف میری ہے، صرف میری۔ اگر وہ مجھے چھوڑ کر کسی اور کے پاس گئی تو میں سب کچھ تباہ کر دوں گا، سب کچھ۔ کیا تم اس سے محبت کرتے ہو؟ ایک بار پھر اس کے وجود سے آواز آئی۔ آگر خاموش ہو گیا۔ نہیں، مجھے اس سے محبت نہیں ہے۔ تو پھر تم اسے کسی اور کے ساتھ برداشت کیوں نہیں کر سکتے؟ فون کی گھنٹی آگر کو ہوش میں لائی۔ آگر نے فون چیک کیا تو کالر آئی ڈی دیکھ کر اس کا موڈ مزید خراب ہوا۔ ایرا غصے سے بھری ہوئی اپنے کمرے میں ٹہل رہی تھی۔ وہ میری چاچو کی بیٹی ہے، اس حوالے سے میری بھی کچھ ذمہ داری بنتی ہے۔ ایرا آگر کی نقل اتارے بولی، چاچو کی بیٹی، چاچو کی بیٹی، ڈیم اٹ! بھائی آپ کب تک اپنے جذباتوں کو چھپائیں گے؟ مان کیوں نہیں لیتے کہ آپ بیلا سے محبت کرتے ہیں؟ ایرا تھکتے ہوئے خود سے بڑبڑائی۔ تبھی اسے دروازے پر دستک کی آواز آئی۔ کون ہے؟ ایرا چلائی۔ ایرا، یہ میں ہوں بیلا، کیا تم مصروف ہو؟ بیلا نے دوسری طرف سے معصومیت سے پوچھا۔ پلیز اندر آؤ۔ سوری بیلا۔ بیلا مسکرائے اندر داخل ہوئی۔ کیا ہوا، تمہارا موڈ کیوں آف ہے؟ بیلا بیگ بیڈ پر رکھے ایرا کی طرف دیکھے بولی، اسے بھول جاؤ۔ اوہ کچھ نہیں۔ کیا تم اپنا ڈریس ساتھ لائی ہو؟ ہاں لے کر آئی ہوں، اس بیگ میں ہے۔ بیلا بیڈ پر رکھے ہوئے بیگ کی طرف اشارہ کیے بولی، چھوڑو اس کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہارے لیے کوئی اور ڈریس سلیکٹ کرتی ہوں۔ کوئی اور ڈریس مطلب؟ بیلا حیران ہوئی۔ ایرا اپنی وارڈروب کی طرف گئی اور بیگ نکال کر بیلا کے حوالے کر دیا۔ بیلا نے جب بیگ کھول کر دیکھا تو ہانپ گئی۔ یہ ڈریس تو بہت چھوٹا ہے، میں اسے کبھی نہیں پہنوں گی۔ میں اس قسم کا ڈریس پہنوں گی تو نہ صرف آگر بلکہ میری فیملی، خاص طور پر عامر مجھے جان سے مار دے گا۔ بیلا التجا کیے بولی۔ ایرا کچھ دیر سوچنے کے بعد بولی، اچھا ٹھیک ہے، ابھی ہم فلم دیکھتے ہیں، تھوڑی دیر بعد ہم تیار ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے، بیلا جان چھوٹنے پر مسکرائی۔ ایرا بہت ہو گیا ہے، پلیز بس کرو، 25 منٹ ہو گئے ہیں تمہیں میں یہ میک اپ کرتے ہوئے، پلیز اب بس کرو۔ بیلا بیزار ہوئے بولی۔ بیلا یار بس 5 منٹ اور، تم نے 5 منٹ پہلے بھی ایسا ہی بولا تھا۔ بیلا تھک گئی تھی، اس کی کمر بھی اکڑ گئی۔ ہو گیا، اب اوپر دیکھو اور میرا جادو دیکھو۔ ایرا 10 منٹ پیچھے ہٹے۔ بیلا نے جب خود کو آئینے میں دیکھا تو حیران ہو گئی۔ بیلا بالکل مختلف لگ رہی تھی۔ اف خدایا، کیا یہ میں ہوں؟ بیلا ہانپتی ہوئی کھڑی ہوئی۔ ایرا، کیا یہ سچ میں ہوں؟ میں نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میں اتنی خوبصورت لگ سکتی ہوں۔ ایسا لگ رہا ہے جیسے میرے سامنے کوئی اور وجود کھڑا ہے۔ بیلا خود کو آئینے میں دیکھے مسکرائی۔ بہت خوبصورت لگ رہی ہو میری جان۔ آج لوگ بیلا ارسلان افندی کو دیکھتے ہی رہ جائیں گے، جو بہت ہی جلد آگر سالار افندی بننے والی ہیں۔ ایرا کہے اسے گلے لگا گئی۔ اس کی بات سنے بیلا کا چہرہ شرم سے سرخ پڑ گیا۔ چلو اب تم بھی جلدی سے تیار ہو جاؤ۔ بیلا اس سے الگ ہوئی۔ میں تو پہلے سے ہی تیار ہوں، بس جیولری باقی رہ گئی ہے۔ ایرا نے جلدی سے ایئر رنگ نکالے، پہننے ہی والی تھی کہ بیلا نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ ایرا نے الجھن سے اس کی جانب دیکھا۔ بیلا نے ایک چھوٹا سا باکس اس کے ہاتھ پر رکھا۔ ایرا نے باکس کھولا تو باکس میں جو موجود تھا اسے دیکھ کر ایرا کو جھٹکا لگا۔ یہ وہی جھمکے تھے جو ایرا کو بہت پسند آئے تھے، لیکن دکاندار نے اسے بیچنے سے منع کر دیا تھا۔ بیلا، یہ تو وہی جھمکے ہیں، لیکن اسے تو دکاندار نے دینے سے منع کر دیا تھا، تم کیسے لائی؟ میں نے ہی دکاندار کو بولا تھا تم سے ایسا کہنے کے لیے، میں تمہیں تمہاری برتھ ڈے پر یہ دینا چاہتی تھی۔ ہیپی برتھ ڈے پیاری لڑکی۔ بیلا اسے گلے لگائے اس کے کان میں سرگوشی کیے بولی، تھینک یو سو مچ میری جان۔ ایرا اس کے گال کو لبوں سے چھوئے پیچھے ہوئی، کانوں میں جھمکے پہنے دونوں ایک ساتھ کمرے سے نکلی، نیچے کی طرف بڑھی۔ پارٹی میں موجود تمام لوگ ان دونوں کو آنکھیں پھاڑے دیکھ رہے تھے۔ ان میں سے کچھ انہیں ہوس کی نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ آرس لوگوں کو اس طرح دیکھ ایرا کی جانب بڑھا۔ ایرا اس کی جانب دیکھ کر ہلکا سا مسکرائی اور اس کے بازوؤں میں ہاتھ ڈالے اس کے ساتھ کھڑی ہو گئی۔ سب کی توجہ کا مرکز اب بیلا تھی۔ بیلا اکیلی کھڑی لوگوں کو دیکھ تھوڑا گھبرا گئی۔ لوگوں کے بیچ دو آنکھیں اسے سخت نظروں سے گھور رہی تھیں۔
सबको बेला की जानिब देखता देख आगिर की आंखें गुस्से से सुर्ख हो गई थी। आगिर ने गुस्से से इरा की जानिब देखा, क्योंकि वो अच्छे से जानता था कि इसके पीछे इसकी बहन का हाथ था। इरा ने आगिर को गुस्से में अपनी तरफ देखता देख आंख मारे आरएस के साथ बातों में मसरूफ़ हो गई। आगिर ने गहरा सांस लिया और अपनी गुड़िया की तरफ देखा। लोग बेला को देख आपस में सरगोशियाँ कर रहे थे। इनकी सरगोशियाँ सुने आगिर का खून उबलने लगा था। इसने गुस्से से अपने हाथ की मुट्ठियाँ ज़ोर से बंद की। आगिर बेला की तरफ बढ़ा ही था कि इसके मोबाइल पर आने वाली कॉल ने उसे रोक लिया। गुड़िया, तुमने मेरे मना करने के बावजूद इस किस्म का ड्रेस पहना, तुम्हें इसकी कीमत अदा करनी होगी। आगिर बेला की जानिब गुस्से से देखते हुए बड़बड़ाया। आगिर फ़ोन कॉल को इग्नोर किए दोबारा आगे बढ़ा था कि आमिर को बेला के साथ देख इसने सर्द आह भरी और बजते हुए फ़ोन को लिए बाहर चला गया। बेला ने आमिर की तरफ देखा और मुस्कुरा दी। जल्द ही इरा ने अपनी बर्थडे का केक काटा। सबने उसे मुबारकबाद दी। सब पार्टी इंजॉय कर रहे थे कि आगिर को एक लड़की के साथ पार्टी में दाखिल होता देख सबको झटका लगा। अपने भाई को अपनी धोखाबाज गर्लफ्रेंड कियारा के साथ खड़ा देखकर उसे भी सदमा हुआ। आगिर इसकी कमर के गिर्द बाजू गाड़े खड़ा था। इन्हें एक साथ देख बेला की आंखों से आंसू उसके गालों पर गिरे। तारीख एक बार फिर दोहराई गई थी। बेला के ज़ख्म एक बार फिर ताज़ा हो गए थे। जारी है। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और कमेंट और शेयर करें। उर्दू नावल्स प्लेटफॉर्म। मोस्ट रोमांटिक नावल कबूल है इश्क तेरा असकलम परी खान। एपिसोड 7। बेला प्लीज़ अब चुप हो जाओ, इतनी जल्दी हार मत मानो। तुम्हें अपनी मोहब्बत पर यकीन रखना होगा, इसके लिए लड़ना होगा। चलो अब ये रोना धोना बंद करो। एरा बेला के आंसुओं को साफ किए बोली, जो 2 दिन से रो रही थी। बेला यार, रोना बंद करो और उठो। मुझे तुम्हें एक बहुत ज़रूरी बात बतानी है। मैं कुछ नहीं सुनना चाहती, सब कुछ ख़त्म हो चुका है। तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं है अपनी मोहब्बत को किसी दूसरे के साथ देखना कितना तकलीफ़ देता है, और मेरे साथ ये एक बार नहीं 2 बार हो चुका है। वो कभी भी मेरी मोहब्बत को नहीं समझेगा और ना ही कभी मेरे जज्बातों को समझेगा। बेला फूट फूट कर रो दी। मैं जानती हूँ कि तुम बहुत तकलीफ़ में हो, लेकिन मैं तुम्हें कुछ ऐसा बताऊँगी जिससे तुम्हारी मोहब्बत हमेशा के लिए तुम्हारी रहेगी। तुम्हें बस उसे एहसास दिलाना होगा। और वो कियारा यहाँ बस भाई को तबाह करने आई है। मैंने कल रात इसकी बातें सुनी। ये सुनकर बेला ने फ़ौरन इसकी तरफ देखा और बोली, तुम क्या कहना चाह रही हो? वो दोबारा आगिर को तकलीफ़ देने आई है। हाँ, वो वापस आकर ना सिर्फ उसे नुकसान पहुँचाना चाहती है, बल्कि इसकी शोहरत, कैरियर, इसकी साख, कारोबार सब कुछ तबाह कर देना चाहती है। यही वक्त है बेला, तुम्हें अपनी मोहब्बत के लिए खड़ा होना होगा। तुम्हें बताना होगा कि आगिर सिर्फ तुम्हारा है। तुमने क्या सुना है? क्या इसने तुम्हें ये बात खुद बताई है? मैं तुम्हें सब बताऊंगी, लेकिन पहले तुम्हें फ़्रेश होकर नाश्ता करना होगा। आंटी ने मुझे बताया है कि तुमने कल रात से कुछ नहीं खाया। अब जाओ और फ्रेश होकर आओ, हमें बहुत सारा काम करना है। लेकिन एरा, मुझे भूख नहीं है। बेला मासूम सी शक्ल बनाए बोली, तुम्हें भूख हो या ना हो, खाना तो तुम्हें खाना होगा। मेरे सामने कोई बहाना नहीं चलेगा। लेकिन एरा, बेला कुछ बोलती इससे पहले ही एरा बोली, बेला, अगर तुम 2 सेकंड में वॉशरूम में दाखिल नहीं हुई तो मैं यहाँ से चली जाऊँगी। एरा धमकी आमेज़ लहजे में बोली, नहीं नहीं, मैं जा रही हूँ। कहते हुए बेला वॉशरूम के अंदर भागी। एरा ने आह भरी और नाश्ते की ट्रे मेज़ पर रख दी और दोबारा बेड पर बैठ गई। ये लड़की यहाँ क्या कर रही है? कुलसूम आगिर पर तकरीबन चिल्लाई। मामा, उसे अपनी गलती का एहसास है और बहुत शर्मिंदा भी है। मेरे ख्याल से सबकी तरह उसे भी दूसरा मौका मिलना चाहिए। इस लड़की के लिए तुमने ये घर, ये शहर 2 साल पहले छोड़ा था। तुमने अपने माँ बाप के बारे में भी नहीं सोचा था। तुम्हारे लिए इस लड़की की मोहब्बत तुम्हारे माँ बाप की मोहब्बत से बढ़कर थी। इस लड़की की खातिर तुमने अपने माँ बाप को तकलीफ़ दी। इस लड़की ने तुम्हें इतनी तकलीफ़ दी और आज इसे अपनी गलती का एहसास हो गया है तो तुम्हारे पास वापस आ गई है। वाह आगिर, दोबारा बेवकूफ़ मत बनो। क्या तुम भूल गए हो? ये लड़की तुम्हारे 10 बिलियन लेकर भागी थी अपनी बॉयफ्रेंड के साथ, और आज भी वो सिर्फ तुम्हारे पैसों के लिए तुम्हारे पास आई है। कुलसूम एक लफ्ज़ चबाए बोली। एरा ने कियारा की जानिब देखा, जो सब देखते हुए भी मुस्कुरा रही थी, लेकिन जैसे ही नज़र एरा की जानिब बढ़ी, अपनी शैतानी मुस्कुराहट मासूम से चेहरे के पीछे छुपा गई। एरा ने इससे नज़रें हटाए अपने भाई की जानिब गुस्से से देखा। भाई, क्या आप वाकई में ये सोचते हैं कि ये लड़की आपके प्यार में वापस आई है? एरा सवालिया नज़रों से आगिर की जानिब देखते हुए बोली। इससे पहले आगिर कुछ बोलता, कियारा बोली, मैं सच में आगिर के लिए वापस आई हूँ। मैं आगिर से बहुत मोहब्बत करती हूँ।
مجھے سمجھ آ گئی ہے کہ پیسوں سے محبت نہیں خریدی جا سکتی اور نہ ہی پیسوں سے خوشی خرید سکتے ہیں۔ بہت اچھے، تو تمہیں اپنی غلطی کا احساس ہے تو ٹھیک ہے، اب سے آپ دونوں ہمارے گھر میں نہیں رہ سکتے اور اگلے ہفتے سے بھائی کمپنی جوائن کریں گے، لیکن سی او کے طور پر نہیں بلکہ ایک ملازم کے طور پر۔ ایرا کی بات کیارا کو چونکا گئی۔ کیارا نے آنکھیں بڑی کر کے ایرا کی جانب دیکھا۔ کیارا جلد ہی خود پر قابو پائے بولی، پلیز ایرا ایسا مت کرو، تم آخر سے اس کا حق کیسے چھین سکتی ہو؟ کیارا ایرا کی جانب بڑھی۔ کیارا مزید کچھ بولتی، ایک زوردار تھپڑ اس کا چہرہ سرخ کر گیا۔ کیارا نے آغر کی جانب دیکھا کہ شاید وہ اپنی بہن کو کچھ کہے گا، لیکن آغر بالکل خاموش کھڑا تھا۔ کیارا نے واپس ایرا کی جانب دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہی تھی، جیسے بھوکا شیر ہرن کو دیکھتا ہے۔ کیارا ڈر کے مارے 2 قدم پیچھے ہوئی۔ مجھے نفرت ہے اس انسان سے جو میری بات کے بیچ بولتا ہے، سمجھی؟ ایرا کیارا کی جانب سخت نظروں سے دیکھتے ہوئے بولی، اور نہ صرف تمہارا بوائے فرینڈ بلکہ تم بھی میری پرسنل اسسٹنٹ کے طور پر ہمارے آفس میں کام کرو گی۔ تمہیں خود کو ثابت کرنا ہوگا کہ تم مسز آغر افندی بننے کے لائق ہو۔ اگلے ہفتے سے آپ دونوں ہمارے آفس کاؤنٹر میں شفٹ ہو جائیں گے اور تب تک آپ دونوں یہاں مہمان بن کر رہ سکتے ہیں۔ اور تم مس کیارا، آج رات تم میرے ساتھ سو گی۔ یہ سن کر کترینہ نے مسٹر اینڈ مسز سالار کی طرف دیکھا، یہ سوچ کر کہ وہ اپنی بیٹی کو ڈانٹیں گے، لیکن وہ فخر سے اپنی بیٹی کو دیکھ کر مسکرائے۔ ہم اپنی بات سے متفق ہیں شہزادی، اور جب تک آپ دونوں ہمارے لیے قابل ثابت نہیں ہو جاتے، ایرا ہماری کمپنی میں بطور سی ای او بیٹھیں گی۔ کیارا کا چہرہ سفید کاغذ کی طرح پیلا پڑ گیا تھا۔ وہ تو ملکہ کی طرح اپنی زندگی یہاں گزارنے آئی تھی، لیکن اس ایرا نے اسے نوکرانی بنا دیا تھا۔ مجھے نیند آ رہی ہے، گڈ نائٹ، یہ کہہ کر آغر اپنے کمرے کی طرف چل پڑا۔ ہمیں بھی نیند آ رہی ہے، گڈ نائٹ شہزادی، کلثوم بولی اور چلی گئی۔ میرے ساتھ چلو، اگرچہ میں اپنا کمرہ بیکار لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا پسند تو نہیں کرتی، لیکن کیا کروں، مجبوری ہے۔ اب چلو میرے ساتھ، اور ہاں، آج سے مجھے صرف میڈم کہنا، سمجھی؟ ایرا غصے سے گھورے اپنے کمرے کی جانب بڑھی۔ کیارا بھی اسے کوستے ہوئے اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگی۔ ایرا نائٹ ڈریس چینج کر کے باہر آئی تو اس نے دیکھا کہ کترینہ اپنے فون میں کچھ ٹائپ کر رہی تھی، لیکن ایرا کے آتے ہی اسے نیچے موبائل چھپا دیا۔ تم صوفے پر سو جاؤ۔ کیارا سر ہلائے صوفے کی طرف جانے والی تھی کہ ایرا نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور بولی، کیا میں تمہارا موبائل فون استعمال کر سکتی ہوں؟ میرے موبائل کی بیٹری ختم ہو گئی ہے، پتہ نہیں کتنی دیر لگے اسے چارج ہونے میں، مجھے بہت امپورٹنٹ کال کرنی ہے۔ کیارا انکار کرنے والی تھی کہ ایرا نے اس کے ہاتھ سے موبائل لے لیا۔ ایرا موبائل لیے بالکونی میں چلی گئی۔ پورا موبائل چیک کرنے پر بھی اسے کچھ نہیں ملا، لیکن اسے یقین تھا کہ کیارا ضرور اس سے کچھ چھپا رہی ہے۔ کچھ دیر بعد ایرا نے اس کا موبائل اسے واپس کر دیا۔ کیارا کے چہرے پر مصنوعی مسکراہٹ سجائے موبائل اس سے واپس لیا۔ رات کے تقریباً 1 بجے ایرا کی آنکھ کھلی۔ اس کی نظر صوفے پر پڑی تو کیارا وہاں موجود نہیں تھی۔ ایرا پریشان ہوئی اٹھی۔ سب جگہ چیک کرنے کے بعد ایرا بالکونی کی جانب بڑھی۔ کیارا وہاں کھڑی سرگوشی میں کسی سے باتیں کر رہی تھی۔ ایرا اس کی باتیں سننے کے لیے مزید تھوڑا اس کے نزدیک آئی۔ نہیں آغر مجھ پہ یقین کرتا ہے، لیکن اس کی بہن اور اس کے ماں باپ میرا یقین نہیں کرتے۔ اس کی بہن بہت چالاک ہے، اس نے مجھے تھپڑ بھی مارا اور خود بطور سی ای او کے طور پر کمپنی سنبھالتی، دل کرتا ہے اس کا منہ توڑ دوں جس طرح اس نے مجھے تھپڑ مارا۔ میرا تو خون کھول اٹھا تھا، اوپر سے مجھے اس کی غلامی کرنی ہوگی۔ نہیں آغر کچھ نہیں بولا، الٹا مجھے تھپڑ پڑنے پر بھی خاموش کھڑا رہا، جیسے اسے کوئی فرق ہی نہ پڑتا ہو۔ اس کی باتیں سن ایرا کا دل کیا ابھی اس کمینی عورت کو یہاں سے نیچے پھینک دے، لیکن ایرا خود پر کنٹرول کیے کھڑی رہی۔ آپ فکر نہ کریں، میں سب سنبھال لوں گی، یہ لوگ جتنی بھی کوشش کر لیں مجھے نہیں روک سکتے، میں اپنے مقصد میں ضرور کامیاب ہو کر رہوں گی۔ اچھا میں اب فون رکھتی ہوں، اس سے پہلے ایرا نامی بال جاگ جائے تمہیں تو میں بتاؤں گی چڑیل۔ ایرا وہاں سے بھاگے اپنے بستر پر لیٹے آنکھیں بند کر گئی۔ کیارا کمرے میں داخل ہوئے، ایرا پر ایک نظر ڈالی، آرام سے بنا کوئی آواز کیے لیٹ گئی۔ بیلا کی آواز پر ایرا ہوش میں آئی۔ ایرا نے بیلا کی جانب دیکھا جو فریش ہوئی اس کے سامنے کھڑی تھی۔ چلو اب جلدی بتاؤ۔ اتنی بھی جلدی کیا ہے، پہلے کھانا تو کھا لوں۔ بیلا بیزار سا منہ بنا گئی۔ کھانا تو تمہیں کھانا پڑے گا، اس معاملے میں تمہاری ایک نہیں سنوں گی، اپنا منہ کھولو۔ ایرا روٹی کا نوالا بنائے اس کے منہ کے قریب کیے بولی، اب بتاؤ کیا بات ہے؟ ایرا نے اسے کیارا کے ناپاک ارادوں کے بارے میں بتایا۔ ایرا کی باتیں سنے بیلا کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ اب تم بتاؤ تم کیا کرنا چاہتی ہو؟ تم چاہتی ہو وہ میرے بھائی کو تباہ کر دے، توڑ دے؟ بھائی پہلے بھی یہ سب برداشت کر چکے ہیں، میں نہیں چاہتی کہ وہ دوبارہ اس سب سے گزرے۔
تو تم مجھ سے کیا چاہتی ہو؟ مطلب مجھے کیا کرنا ہوگا؟ بیلا نہ سمجھی سے ایرا کی جانب دیکھنے لگی۔ تمہیں بھائی پر اپنا جادو کرنا ہوگا، انہیں کیارا کے جادو سے نکال کر اپنے قابو میں کرنا ہوگا۔ اچھا، یہ سب ہوگا کیسے؟ تمہارا بھائی تو مجھے صرف اپنی گڑیا سمجھتا ہے، چھوٹی گڑیا جو ابھی بھی اس کے خیال میں 1 کلاس میں ہے۔ بیلا غصے سے تپتے ہوئے بولی، میری جان تم فکر نہ کرو، میرے پاس ایک ایسا آئیڈیا ہے کہ بھائی کیارا کو چھوڑے الٹے پاؤں تمہارے پاس بھاگے آئیں گے۔ ایرا تم کرنا کیا چاہتی ہو؟ بیلا حیرانگی سے اس کے مسکراتے ہوئے چہرے کی جانب دیکھنے لگی۔ تم وہ سب مجھ پر چھوڑ دو، تم بس صبح تیار رہنا، تم میرے ساتھ ہماری کمپنی جوائن کرو گی۔ میں ایسا کیوں کروں گی؟ میرا بزنس سے کیا واسطہ؟ میں تو میڈیکل کی اسٹوڈنٹ ہوں۔ ہاں تم میڈیکل کی اسٹوڈنٹ ہو، لیکن اگر بھائی کو پانا چاہتی ہو تو جیسا میں کہہ رہی ہوں بالکل ایسا ہی کرنا ہوگا تمہیں۔ لیکن میں گھر میں کیا کہوں گی؟ میں نہیں جانتی، تم بس صبح ریڈی رہنا، میں تمہیں پک کرنے آؤں گی۔ ایرا بیلا کے گالوں کو لبوں سے چھوئے اپنا بیگ اٹھائے بیلا کو پریشانی میں چھوڑے خود چلی گئی۔ یا اللہ، محبت اتنی مشکل کیوں ہوتی ہے؟ یہ محبت نہ جانے مجھ سے کیا کیا کروائے گی۔ بیلا خود سے بڑبڑائے اپنا سر گھٹنوں میں دبا گئی۔ جاری ہے، پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور کمنٹ کریں اور شیئر کریں۔ اردو ناولز پلیٹ فارم، پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔ مکمل ناول قبول ہے عشق تیرا از قلم پری خان، ایپیسوڈ 8۔ پاپا میں آج سے ایرا کے ساتھ کچھ دنوں کے لیے اس کی کمپنی جوائن کروں گی۔ بیلا ناشتے کی ٹیبل پر بیٹھی ایک ہی سانس میں اپنی بات کہے سب کی جانب دیکھنے لگی۔ ایسا کیوں؟ تم وہاں جا کر کیا کرو گی؟ ارسلان سمیت سب سوالیہ نظروں سے بیلا کو گھور رہے تھے۔ میں بزنس کے بارے میں تھوڑا بہت جاننا چاہتی ہوں اس لیے۔ لیکن تم بزنس کے بارے میں جان کر کیا کرو گی؟ میرے خیال سے تم ایک میڈیکل اسٹوڈنٹ ہو، تمہارا زیادہ فوکس ادھر ہونا چاہیے۔ عامر حیرانگی سے بیلا کی جانب دیکھے بولا، میں جانتی ہوں میں میڈیکل کی اسٹوڈنٹ ہوں اور مجھے اپنی پڑھائی پر فوکس کرنا چاہیے، لیکن میں بزنس کے بارے میں بھی کچھ جاننا چاہتی ہوں۔ اگر ایسی بات ہے تو تمہیں ادھر جانے کی کیا ضرورت ہے؟ تم اپنی کمپنی کیوں نہیں جوائن کرتی؟ عامر تمہاری ہیلپ کرے گا۔ نہیں پاپا، میں آپ دونوں کو پریشان نہیں کرنا چاہتی۔ آپ دونوں آج کل کتنے بزی ہوتے ہیں مجھے اندازہ ہے۔ آپ فکر نہ کریں، ایرا میری مدد کر دے گی، اور ویسے بھی ایرا مجھے بہتر سمجھا سکے گی، جیسے تمہیں بہتر لگے، لیکن اگر تم چاہو تو ہم سے بھی ہیلپ لے سکتی ہو۔ تھینک یو پاپا، آپ بہت اچھے ہیں۔ بیلا خوشی سے اچھلتے ہوئے ارسلان کے زور سے گلے لگی۔ بیلا کی خوشی کو دیکھ سب ایک ساتھ مسکرا گئے۔ گڈ مارننگ۔ کیارا نائٹ ڈریس میں موجود سب کی جانب دیکھے آخر کے ساتھ والی چیئر پر بیٹھ گئی۔ تمہیں کس نے کہا ہے یہاں بیٹھنے کے لیے؟ اٹھو یہاں سے۔ ایرا کیارا کو ناگوار نظروں سے دیکھتے ہوئے بولی۔ کیارا شرمندہ ہوئی عاقب کی جانب دیکھنے لگی کہ شاید عاقب کچھ بولے گا، لیکن عاقب اس سب سے انجان ناشتہ بنانے میں مصروف تھا۔ تم نے سنا نہیں میں نے کیا کہا؟ اٹھو یہاں سے۔ ایرا کی آواز بلند ہونے پر کیارا نہ چاہتے ہوئے بھی وہاں سے اٹھی۔ جاؤ پہلے جا کر اپنا ڈریس چینج کر کے آؤ، یہ کوئی ہوٹل نہیں ہے جہاں تم جب دل چاہے اٹھا کر کچھ بھی پہن کر آ جاؤ۔ یہ ہمارا گھر ہے، یہاں پہ رہنے کے کچھ اصول ہیں جو تمہیں فالو کرنے ہیں۔ جاؤ جا کر پہلے اپنا ڈریس چینج کر کے آؤ، ایرا سخت لہجے میں بولی۔ کیارا منہ لٹکائے سب پہ ایک نظر ڈالے، جیسے آئی تھی ویسے ہی واپس چلی گئی۔ پاپا میں آفس جا رہا ہوں، آپ چلیں گے میرے ساتھ؟ عاقب اپنا ناشتہ ختم کیے کھڑا ہوا۔ نہیں تم جاؤ، میں آ جاؤں گا۔ عاقب سالار کی بات سنے گردن کو ہم میں ہلائے باہر کی جانب چلا گیا۔ پاپا یہ بھائی کو کیا ہوا ہے؟ پہلے تو کیارا کو اف بھی کہہ دو بھائی بھڑک جاتے تھے، لیکن اب میری اتنی تسلیل کے بعد بھی بھائی خاموش ہیں۔ ایرا عاقب کے ٹھنڈے رویے کو دیکھ حیران ہوئی۔ یقیناً تمہارے بھائی کے دماغ میں کچھ بڑا چل رہا ہے، ورنہ وہ اتنی دیر خاموش نہیں رہ سکتا، اور وہ بھی تب جب ہم اس کی محبت کو ذلیل کر رہے ہوں۔ بھائی آپ فکر نہ کریں، بہت جلد میں سب راز معلوم کر لوں گی۔ ایرا گہری سوچ میں ڈوبی بولی۔ ایرا مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ گھبراہٹ سے بیلا کے ہاتھ پاؤں پھول رہے تھے۔ یہ ڈرنے کا ٹائم نہیں، کچھ کرنے کا ٹائم ہے۔ اگر آج کچھ نہ کیا تو ساری زندگی پچھتاؤ گی، اور پچھتانے سے اچھا ہے کہ ابھی جو میں کہہ رہی ہوں وہ کرو۔ ایرا کی باتیں سنے بیلا نے گہرا سانس بھرتے ہوئے خود کو ریلیکس کیا۔ بتاؤ مجھے کیا کرنا ہے؟ بیلا بالکل تیار تھی۔ یہ ہوئی نہ بات، چلو میرے ساتھ آؤ۔ ایرا اپنی چیئر سے کھڑی ہوئی بولی۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ بیلا اس کے پیچھے چلتی ہوئی بولی۔ اپنے پہلے پلان کی طرف۔ مطلب میں سمجھی نہیں۔ میری جان بہت جلد سمجھ جاؤ گی۔ السلام علیکم پاپا۔ ایرا سالار کے کیبن میں داخل ہوئی بلند آواز میں بولی۔ السلام علیکم انکل۔ بیلا بھی ایرا کے پیچھے پیچھے کیبن میں داخل ہوئی۔ وعلیکم السلام۔ آج دونوں شہزادیاں ایک ساتھ، وہ بھی میرے کیبن میں۔ سالار دونوں کو ایک ساتھ دیکھ کر مسکرا گیا۔
पापा मुझे आपसे एक बहुत इम्पोर्टेंट काम है। बेला कुछ दिन यहीं हमारे साथ हमारे ऑफिस में काम करेगी। बेला बिज़नेस के बारे में थोड़ा नॉलेज लेना चाहती है और आप तो जानते हैं बतौर CEO मुझ पर कितनी ज़िम्मेदारी है। ऐसे में मैं बेला को अच्छे से गाइड नहीं कर पाऊँगी, इसलिए मैं सोच रही थी क्यों ना भाई बेला को गाइड करें। वैसे भी भाई को तो बिज़नेस के बारे में सब पता है, वो एक कामयाब बिजनेसमैन है। इनके साथ रहकर बेला को बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा। क्यों नहीं, बेला अगर बिज़नेस के हवाले से कुछ सीखना चाहती है तो आखिर बेस्ट चॉइस है। मैं अभी आखिर को बोलता हूँ। सलार कहे आखिर को कॉल मिलाने लगा। कुछ देर बाद आखिर सलार के केबिन में दाखिल हुआ, लेकिन वहाँ बेला को देख उसे हैरानगी हुई। आखिर बेला को घूरते हुए सलार से मुखातिब हुआ। पापा, आपने मुझे बुलाया था? हाँ बरखुरदार। बेला बेटी बिज़नेस के बारे में थोड़ा बहुत जानना चाहती है और मैं चाहता हूँ तुम इसे अपने साथ रखो। तुम्हारे साथ रहकर ये बहुत कुछ सीख जाएगी। लेकिन उसे क्या ज़रूरत है इन सब कामों में पढ़ने की? ये एक मेडिकल की स्टूडेंट है, इसका क्या वास्ता बिज़नेस से? आखिर सख्त नज़रों से बेला की जानिब देखे बोला। इसकी नज़रों की तपिश से बेला के हाथ पांव दोबारा फूलने लगे थे। हाँ, हम मानते हैं बेला अलग शोबे से ताल्लुक़ रखती है, लेकिन वो ये सब सीखना चाहती है तो हम क्या कर सकते हैं? हम अब इसे मना करके इस बेचारी का दिल तो नहीं तोड़ सकते। एरा अपने भाई की सख्त नज़रों को देखते जल्दी से बोली। लेकिन आखिर कुछ बोलता इससे पहले ही सलार बोल उठा था। लेकिन कुछ नहीं, तुम बेला बेटी को सब सिखाओगे और ये मेरा आखिरी फ़ैसला है। ठीक है, जैसे आपकी मर्ज़ी। आखिर कहे वहाँ से निकल गया। एरा अपना प्लान कामयाब होने पर मुस्कुरा गई। आखिर का गुस्सा देखकर लग रहा था जैसा इसका तीर सही निशाने पर लगा है। एरा, क्या तुम्हें पक्का यकीन है मुझे सच में इसके केबिन में जाना चाहिए? बेला बहुत घबराई हुई थी। हाँ बिल्कुल, तुम्हें बिल्कुल जाना है बेला। और एरा आगिर के केबिन के बाहर खड़ी एक दूसरे को देख रही थी कि अब इतने में इन्हें कियारा आती हुई दिखाई दी, जो आगिर के केबिन की तरफ ही आ रही थी। बेला, तुम अंदर जाओ, मैं इस चुड़ैल को संभालती हूँ। एरा नागवारियत से कियारा की जानिब देखे बोली। और हाँ, जो भी हो जाए तुम आगिर के आगे नर्म नहीं पड़ोगी। जैसे मैंने बोला है बिल्कुल वैसा ही करना। चलो अब जाओ। बेला डरते डरते आगिर के केबिन में दाखिल हुई। कियारा बेला को आगे के केबिन में दाखिल होता देख इसके केबिन की जानिब बढ़ी, लेकिन इससे पहले वो अंदर दाखिल होती एरा इसका बाजू पकड़े अपने मुकाबिल लाई। इतनी जल्दी में कहाँ जा रही हो जबकि तुम्हारी मैडम यहाँ खड़ी है? तुमने टाइम देखा है? ये कौन सा वक्त है ऑफिस आने का? मेरी एक बात कान खोल कर सुन लो, मुझे लेट आने वाले लोग हरगिज़ पसंद नहीं। चलो अब जाकर मेरे लिए कॉफ़ी लेकर आओ। एरा कियारा के मेकअप से बड़े हुए चेहरे पर एक नज़र डाले मुस्कुराती हुई अपने केबिन की जानिब बढ़ी। कियारा जाती हुई एरा को देखे मुश्किल से अपना गुस्सा कंट्रोल किए अपनी मुट्ठियाँ ज़ोर से भींच गई। तुम्हें तो छोड़ूंगी नहीं, बस एक बार मुझे इस ख़ानदान की बहू बनने दो, देखना फिर मैं तुम्हारा क्या हासिल करती हूँ। एरा गुस्से से अपनी एड़ियाँ फर्श पर मारे लिफ्ट की जानिब बढ़ी। कियारा जैसे ही लिफ्ट की जानिब बढ़ी, लिफ्ट के बाहर रिपेयरिंग का साइन बोर्ड लगा हुआ था। या खुदा, अभी तो मैं इस लिफ्ट से आई हूँ, इतनी जल्दी ख़राब कैसे हो गई? कियारा कुछ देर सोचने के बाद वापस एरा के केबिन की जानिब बढ़ी। कियारा नॉक की अंदर दाखिल हुई। एरा जो चेयर पर बैठी लैपटॉप में मसरूफ़ थी, उसे खाली हाथ देखकर बोली, मेरी कॉफ़ी कहाँ है? वो लिफ्ट ख़राब हो गई है तो? लिफ्ट ख़राब हुई है, सीढ़ियाँ तो सही सलामत मौजूद हैं, वहाँ से जाकर मेरे लिए कॉफ़ी लाओ। सीढ़ियों से? सीढ़ियों का नाम सुनते ही कियारा का दिमाग घूम गया। हम इस वक्त 5th फ्लोर पर मौजूद हैं, मैं इतनी नीचे से कॉफ़ी कैसे लेकर आऊँगी? वो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे कॉफ़ी चाहिए और ये मेरा हुक्म है। उम्मीद करती हूँ तुम मुझे मायूस नहीं करोगी। तुम जानती हो अगर मैं नाराज़ हो गई तो कुछ भी हो सकता है। एरा कियारा की हैरत से फैली हुई आंखें देख कर बोली, मैं लाती हूँ। कियारा मस्नूई मुस्कुराहट होंठों पर सजाए केबिन से बाहर निकल गई। इसकी हालत देख एरा का कहकहा पूरे केबिन में गूंजा। इसने जानबूझकर लिफ्ट के बाहर वो बोर्ड लगवाया था और यकीनन आज उसे थका थका के मारने वाली थी। बेला आगिर के केबिन में सोफे पर बैठी मैगज़ीन पढ़ रही थी, साथ साथ आगिर को भी देख रही थी, जो कब से अपने लैपटॉप पर झुका हुआ था। जब से बेला इसके केबिन में आई थी, इसने अभी तक उसे एक लफ्ज़ नहीं बोला था। बेला आगिर को देखने में मगन थी कि आगिर के एकदम से उसे देखने पर बेला अपनी नज़रें झुला गई। आगिर बेला को कुछ देर घूरने के बाद बोला, गुड़िया, तुमने मेरे मना करने के बावजूद वो ड्रेस क्यों पहना? बेला चौंकी, उसे उम्मीद नहीं थी कि आगिर इस वक्त ऐसी बात करेगा। मेरी मर्ज़ी, मुझे जो अच्छा लगेगा मैं वो पहनूंगी, वो मेरा ज़ाती मसला है। मुझे नहीं लगता किसी को इसमें मुदाखलत करने की ज़रूरत है। बेला एरा के कहे मुताबिक कॉन्फिडेंस से बोली, जैसे उसे किसी चीज़ से फ़र्क ही नहीं पड़ा हो।
आखिर को बेला से इस किस्म के जवाब की उम्मीद नहीं थी। आज तक बेला ने इसकी हर बात मानी थी। ओह, तो तुम इतनी बड़ी हो गई हो कि अपनी मर्जियाँ करने लगो। आखिर अपनी जगह से उठता हुआ इसके करीब आया। बेला डर के मारे अपनी जगह से खड़ी हुई। तो ये बिज़नेस का क्या नया ड्रामा है? मैं जानता हूँ तुम्हें इस सब में ज़रा दिलचस्पी नहीं है, तो फिर क्यों? किसने कहा मुझे दिलचस्पी नहीं है? मुझे वाकई में बिज़नेस के बारे में जानना है। अच्छा, तो तुम वाकई में बिज़नेस के बारे में जानना चाहती हो तो ठीक है। आखिर गुस्से से टेबल की जानिब बढ़ा और वहाँ से एक फ़ाइल उठाए इसके हाथ में थमा दी। इस फ़ाइल को पढ़ो। आखिर बेला के सामने खड़ा हुआ, इसकी आंखों में आंखें डाले बोला। बेला इससे नज़रें हटाए फ़ाइल को खोले पढ़ने लगी। तकरीबन उसे फ़ाइल पढ़ते हुए 10 मिनट हो गए थे, लेकिन एक भी लफ्ज़ उसके पल्ले नहीं पड़ा था। फ़ाइल ख़त्म किए बेला ने गहरा सांस भरा, जैसे बहुत मेहनत का काम किया हो। हाँ, तो क्या समझ आया? बेला कंधे उचका गई। बिज़नेस में 2 बातें हमेशा याद रखना। कोई भी काम करो, जैसा भी काम करो, इसमें ईमानदारी लाज़मी होनी चाहिए। अगर तुम ईमानदार हो तो कोई भी तुम्हें हरा नहीं सकता। और दूसरी बात, अपनी कमियों को तलाश करो और इस पर फोकस करो, क्योंकि इंसान की कमियां उसे बेहतर बनाती हैं। तो फिर तुम क्यों पहले की हुई गलती को दोहरा रहे हो? बेला आगिर की जानिब देखे बोली। मतलब, तुम कहना क्या चाहती हो? आगिर सवालिया नज़रों से उसे देखने लगा। तुम कियारा को कैसे माफ़ कर सकते हो? तुम कैसे इसके धोखे को भूल सकते हो? बेला ऊंची आवाज़ में चिल्लाई। तुम्हारा इस बात से कोई लेना देना नहीं। बेला का दिल किया चीख चीख कर उसे बताए कि इसकी हर बात से इसका लेना देना है। अपना सामान पकड़ो और मेरे साथ चलो, हमें मीटिंग के लिए जाना है। आखिर बात को ख़त्म किए अपना ज़रूरी सामान लिए केबिन से निकल गया। बेला अपनी आंखों में आए हुए आंसू को साफ किए इसके पीछे भागी। वो जितना भी इस इंसान से दूर भागना चाहिए, लेकिन नहीं भाग सकती थी। कियारा तकरीबन 10 बार कॉफ़ी ला चुकी थी, लेकिन हील की वजह से कॉफ़ी बीच रास्ते में ही गिर जाती थी। थकावट की वजह से इसका बुरा हाल हो गया था। टांगें अलग दर्द कर रही थीं। अल्लाह अल्लाह करके कियारा एक कप कॉफ़ी का ऊपर ले ही आई थी। मैडम, ये रही आपकी कॉफ़ी। कियारा उल्टे सीधे पाँव रखे एरा के टेबल की जानी पड़ी। कियारा की हालत देख एरा ने बमुश्किल अपनी हंसी कंट्रोल की। ये कॉफ़ी है? एरा कॉफ़ी का एक घूंट भरे बाहर थूक गई। इतनी ठंडी कॉफ़ी कौन पीता है? तुम्हें सख्त मेहनत की ज़रूरत है, ऐसे तो तुम मुझे कभी इम्प्रेस नहीं कर पाओगी। चलो जल्दी से ये सब फाइल लेकर मीटिंग हॉल आ जाओ। एरा इसे हुक्म दिए बाहर चली गई। कियारा मुंह के ज़ाविये बिगाड़े टेबल से सारी फाइल उठाए टेढ़ा चलती हुई एरिया के पीछे गई। ना चाहते हुए भी इसे इसके नखरे बर्दाश्त करने पड़ रहे थे। हेलो। बेला आगिर को देखने में इतनी मगन थी कि अपने इतने करीब से आती अनजानी आवाज़ सुनकर बौखला गई। बेला अनजानी नज़रों से अपने सामने बैठे इंसान को देखने लगी। ज़्यादा दिमाग पर जोर डालने की ज़रूरत नहीं है। आप मुझे नहीं जानती, लेकिन मैं आपको जानता हूँ, और आपकी कज़न एरा को भी। एरा का नाम सुनकर बेला ने अपने सामने बैठी हुई एरा की जानिब देखा, जो पहले ही इन दोनों की जानिब देख रही थी। बेला की परेशानी को समझते हुए एरा ने बेला को टेक्स्ट किया। बेला ने फ़ौरन अपना मोबाइल खोला और एरा का मैसेज रीड किया। एरा का मैसेज रीड किए बेला की आंखें हैरत से फैल गईं। बेला अपनी आंखें बड़ी किए एरा की जानिब देखने लगी। एरा मुस्कुराए, उसे सीधा हाथ का अंगूठा दिखाए, सरगोशी में ऑल दी बेस्ट बोले मुस्कुरा गई। अब तो आपको पता चल गया होगा मैं कौन हूँ। मेरा नाम वसीम है, लेकिन आप मुझे सीमी कह सकती हैं। मेरे सारे दोस्त भी मुझे सीमी कहते हैं। वसीम मुस्कुराए, अपना सीधा हाथ बेला के आगे किए इसके चेहरे की जानिब देखने लगा। मेरा नाम बेला अरसलान अफंदी। बेला इसके हाथ को इग्नोर किए होंठों पर मस्नूई मुस्कुराहट सजाए ज़बरदस्ती बोली। उसे एरा का यह प्लान बिल्कुल पसंद नहीं आया था। आगे जो सामने खड़ा क्लाइंट को प्रेजेंटेशन दे रहा था, बेला को किसी के साथ हंसकर बातें करते देख इसका खून खोलने लगा। वहीं खड़े खड़े इसकी आंखें गुस्से से सुर्ख हो गईं। इसका दिल किया अभी जाकर बेला के साथ बैठे वजूद की हड्डियां पसलियां तोड़ दें, लेकिन क्लाइंट्स के सामने उसे बर्दाश्त करना पड़ा। एरा अपने भाई की गैर होती हालत को देख मुस्कुराई। इसका प्लान काम कर रहा था। भाई, आगे मैं एक्सप्लेन करती हूँ। एरा चुप खड़े आगिर को देख अपनी जगह से खड़ी हुई। आगिर हाँ में सर हिलाते हुए एरा की जगह जाकर बैठ गया। इसकी आंखें अभी भी बेला और इसके साथ बैठे हुए इंसान पर थीं, जबकि कियारा की नज़रें अपने साथ बैठे हुए आगिर पर थीं। इसने आगिर की आंखों में इस कदर मोहब्बत और जुनून कभी नहीं देखा था, अपने लिए तो कभी नहीं। कियारा ने नफरत से बेला की जानिब देखा। कियारा को अब बेला से ख़तरा लाहक हो रहा था। बेला, बाहर आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। आगिर की जब बर्दाश्त ख़त्म हो गई तो बेला को बुलंद आवाज़ में बोले। 1 मिनट भी ज़ाया किए बिना वहाँ से निकल गया। मीटिंग हॉल में मौजूद सब आगिर को जाता हुआ देखने लगे। इससे पहले कोई सवाल करता, एरा ने सबको अपनी तरफ मुतवज्जो कर लिया।
बेला सब पर एक नज़र डाले आगिर के पीछे गई। आगिर गुस्से से पागल हुआ अपनी केबिन में घूम रहा था। बेला अभी केबिन में दाखिल ही हुई थी कि आगिर उसे बाजुओं से पकड़े दीवार के साथ पिन किए अपनी आग बरसाती आंखों से उसे देखने लगा। कौन था वो? बेला जो पहले ही घबराई हुई थी, आगिर की इस हरकत से इसकी बची हुई जान भी निकल रही थी। इसकी सांसें नॉर्मल से ज़्यादा तेज़ हो गई थी। इसकी पेशानी पर पसीने की नन्ही बूंदें इसके डर की कैफियत को बयान कर रही थीं। बेला वो कौन था? इस बार आगिर गुस्से से चिल्लाया। बेला डर से अपनी आंखें ज़ोर से बंद कर गई। आगिर इसके चेहरे को थोड़ी से पकड़े ऊपर किए इसके चेहरे को गौर से देखते हुए एक बार फिर बोला, गुड़िया वो कौन था जिसके साथ तुम इतना हंस हंस कर बातें कर रही थी? इस बार इसकी आवाज़ में कुछ ऐसा था। बेला अपनी आंखें खोले उसे देखने लगी। एरा की बातें एकदम से इसके जहन में आईं। बेला तुम्हें कमज़ोर नहीं पड़ना। अगर इस बार तुम भाई के आगे कमज़ोर पड़ गई और बिल्कुल वैसा ही किया जैसा वो चाहते हैं तो फिर भूल जाना भाई को। बेला आगिर की शोला बरसाती आंखों में देख अपना होश गला तर किए बोली, वो मेरा फ्रेंड है, हम बहुत अच्छे दोस्त हैं। कहीं ये वही दोस्त तो नहीं? आगिर को एरा वाली बात याद आई। कौन सा दोस्त? बेला हैरान हुई उसे देखने लगी। ये वही है ना जिसने तुम्हें धोखा दिया था? आगिर बेला को छोड़े पीछे हुआ। आगिर की बातें बेला के दिमाग के ऊपर से जा रही थी। मैं छोड़ूंगा नहीं उसे तो मैं जान से मार दूंगा। आगिर आग बगोला हुआ बाहर की जाने पड़ा। इससे पहले आगिर बाहर जाता, बेला के अल्फाज उसे वहीं रोक गए। तुम होते कौन हो मेरे मामलात में बोलने वाले? जिस तरह तुम अपनी ज़िंदगी पर इख्तियार रखते हो, मुझे भी पूरा इख्तियार है अपनी ज़िंदगी पर। मैं जिस मर्ज़ी के साथ रहूँ, तुम्हारा इससे कोई वास्ता नहीं। जिस तरह तुम कियारा के हवाले से किसी को जवाब दे नहीं हो, इस तरह तुम्हें भी किसी से उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। बेला अपनी सारी हिम्मत जमा किए एक ही सांस में बोली। आगिर पीछे पलटे बेला को हैरानगी से देख रहा था। आज पहली बार बेला ने इससे इस लहजे में बात की थी, वरना इससे पहले आगिर के बाद बेला के लिए पत्थर की लकीर होती थी। बेला आगिर को एक नज़र देखिए वहाँ से निकल गई। केबिन से बाहर निकलकर बेला ने एक लंबा सांस खारिज किया। उसे आगिर से इस तरह बात करना अच्छा तो नहीं लग रहा था, लेकिन वो इसे खो भी नहीं सकती थी। उसे हमेशा के लिए पाने के लिए इस वक्त उसे मजबूत बनना था। जारी है। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड मस्ट लाइक वीडियो। मुकम्मल नावल मोस्ट रोमांटिक कबूल है इश्क तेरा अस्कलम परी खान। एपिसोड 9। प्रोजेक्ट मिलने की खुशी में क्यों ना पार्टी की जाए, क्या ख्याल है सबका? एरा पुरजोश हुई। आज बतौर CEO इसकी पहली कामयाबी थी जिसे वो सेलिब्रेट करना चाहती थी। नेकी और पूछ बताओ कब रखनी है पार्टी? जब तुम कहोगी बंदा हाजिर हो जाएगा। वसीम भी पुरजोश हुआ। सब पार्टी को लेकर बहुत खुश थे सवाए आगिर की मुसलसल नज़र वसीम पर थी। अगर वसीम इस प्रोजेक्ट में इसका पार्टनर ना होता तो आगिर उसे कब यहाँ से बाहर फेंक चुका होता। सब तैयार हुए पार्टी हॉल पहुँच चुके थे सवाए बेला और एरा के। पार्टी में बस ऑफिस के लोग और बिजनेस पार्टनर ही मौजूद थे। सब इंजॉय किए, हाथों में ड्रिंक्स के गिलास लिए एक दूसरे से बातों में मसरूफ़ थे। आगिर सबसे अलग एक साइड पर बैठे ड्रिंक पीते हुए सबको देख रहा था, जबकि कियारा घुटनों तक आते शॉर्ट ड्रेस में मौजूद थी। आगिर के आगे पीछे मंडला रही थी। उसे आगिर की टेंशन पाने के लिए वो कुछ भी करने को तैयार थी। एरा के साथ बेला को एंट्री दरवाजे से आता देख आगिर के साथ साथ वसीम की निगाहें भी बेला को देख रही थी। आगिर की सांसें ही थम गईं। ग्रीन पैरों तक आते फेरी फ्रॉक में इसका गोरा रंग मज़ीद चमक रहा था। चेहरे पर मेकअप किए, बालों में कर्ल डाले, बाजुओं में दुपट्टा लिए, पाँव में ऊंची हील डाले बेला नज़र लग जाने की हद तक खूबसूरत लग रही थी। इस बार इसने अपनी ड्रेसिंग का ख्याल रखा था। वो ऐसा काम हरगिज़ नहीं करना चाहती थी जिस काम को करने का इसका वजूद खुद इजाज़त ना देता हो। एरा भी ब्लू मैक्सी में बहुत खूबसूरत लग रही थी। इसकी मैक्सी का गला काफ़ी डीप था, लेकिन एरा शुरू से ही इस तरह के कपड़े पहनती आ रही थी, इसलिए उसे इतना मसला नहीं होता था। उसे इस तरह की ड्रेसिंग पसंद थी। दोनों चलते हुए हॉल में दाखिल हुए। RS एरा को आता देख इसके पास आए उसे गले लगा गया। बेला को देख वसीम जल्दी से बेला की जानिब बढ़ा। वसीम को बेला की जानिब बढ़ता देख आगिर गुस्से से लाल पीला हुआ कुर्सी से उठा। वाह, बहुत खूबसूरत, वसीम बेला के पास खड़े हुए बोला। बेला वसीम की इस बात पर हल्का सा मुस्कुरा गई। आज पहली बार इन गुनहगार आंखों ने इतनी खूबसूरत लड़की देखी है। क्या मैं इस खूबसूरत लड़की का हाथ पकड़ सकता हूँ? वसीम बेला के आगे थोड़ा सा झुके अपना सीधा हाथ इसके आगे फैलाए इसकी आंखों में देखने लगा।
बेला एक नज़र पार्टी हॉल में मौजूद सब अफराद पर डाले एरा की जानिब देखने लगी। उसे समझ नहीं आ रही थी क्या करे। आखिर भी उसे कहीं नज़र नहीं आ रहा था। आखिर पीछे काउंटर पर खड़ा वसीम का तमाशा देख रहा था। इसका सब्र ख़त्म हो रहा था। एरा ने बेला को आगे की तरफ इशारा किया जो गुस्से से आग बबूला हो रहा था। मेरी जान, लोहा गर्म है, मार तो हथौड़ा। एरा बेला के कान में सरगोशी की, मुस्कुरा गई। बेला मसनूई मुस्कुराए अपना हाथ वसीम के हाथ में दिए उसे देखने लगी। वसीम बेला का नरम मुलायम हाथ अपने हाथों में देके इसके ऊपर अपने लब रख गया। अब तो आगिर की बर्दाश्त ख़त्म हो गई थी। आगिर हाथ में पकड़ा ग्लास जोर से फर्श पर मारे गुस्से से वसीम की जानिब बढ़ा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी गुड़िया को छूने की? आगिर वसीम को गिरबान से पकड़े गुस्से से पागल हुए इसके मुंह पर लगातार मुक्के बरसा रहा था। इस अचानक हमले पर बेला और इरा के साथ पार्टी में मौजूद तमाम लोग डर गए थे। आरएस अपना पूरा जोर लगाए वसीम को आगिर के चुंगल से छुड़ाने की नाकाम कोशिश कर रहा था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी गुड़िया को हाथ लगाने की? मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। वसीम के मुंह से अब खून आना शुरू हो गया था। एरा और बेला बहुत डर गई थी। इन्हें अब वसीम की फ़िक्र होने लगी थी। आखिर को जानवरों की तरह वसीम को मारता देख बेला की तो टांगें कांप रही थी। इसका रंग पीला पड़ गया था। आखिर छोड़ो उसे। आरएस के साथ 2-3 आदमियों ने मिलकर उसे वसीम से दूर हटाया। क्या तुम पागल हो गए हो? अभी वो मर जाता। आरएस चीखा। हाँ तो मर जाता। इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी गुड़िया को हाथ लगाने की? उसे तो मरना ही चाहिए। आखिर एक बार फिर वसीम की तरफ उसे मारने के लिए लगा। वसीम जो पहले ही फर्श पर पड़ा बुरी तरह कांस रहा था, आगिर को अपनी जानिब एक बार फिर लपकता देख जल्दी से नीचे से खड़ा हुआ। कियारा आगिर को बेला के पीछे इस कदर पागल देख सदमे में थी। कियारा को अब सही मानों में अपनी टेंशन लग गई थी। आगिर होश में आओ। तुम जानते भी हो तुम अभी क्या करने जा रहे थे? तुम एक इंसान की जान लेने जा रहे थे। किस बात का इतना गुस्सा है? हाँ, बेला अब बड़ी हो गई है। वो अपना अच्छा बुरा खुद समझती है। अब तुम उसे बच्ची की तरह ट्रीट करना बंद कर दो। अगर वो इस लड़के को पसंद करती है तो तुम्हें क्या मसला है? तुम भी तो कियारा को पसंद करते हो। नहीं, बेला किसी को पसंद नहीं करती। वो सिर्फ मेरी है, समझे तुम? आगिर आँख बरसाती आंखों से आरएस की जानिब देखे अपने सामने डरी सहमी बेला को हाथ से पकड़े वहाँ से ले गया। कियारा फ़ौरन इनके पीछे भागी। इससे पहले कियारा इनके पीछे जाती, एरा उसे बाजुओं से पकड़े रोक गई। इनके पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है। वो दोनों खुद अपना मामला हल कर लेंगे। जाओ, जाकर तुम पार्टी इंजॉय करो। एरा कियारा की जानिब देखे मुस्कुरा गई। कियारा सख्त नज़रों से इसकी जानिब देखते हुए वहाँ से चली गई। अगर मुझे पता होता तुम्हारा भाई इस लड़की के पीछे इस कदर पागल है तो मैं कभी नहीं ये ड्रामा करता। देखो मेरे खूबसूरत से चेहरे का क्या हाल कर दिया है तुम्हारे भाई ने। वसीम अपने होठों से निकलते हुए खून को साफ किए बोला। देखो मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे नहीं पता था भाई इतने जज्बाती हो जाएंगे। तुम हॉस्पिटल जाकर अपना इलाज करवा लो और अगर हो सके तो कुछ दिन भाई की नज़रों से दूर भी रहना। भूल कर भी इनके सामने मत आना। बहुत जालिम है तुम्हारा भाई। नक्शा बिगाड़ कर रख दिया मेरे चेहरे का। पता नहीं अब कोई लड़की मेरी तरफ देखेगी कि नहीं। वसीम दर्द से कराहते हुए बोला। इसकी हालत देख एरा की हंसी छूट गई। इसे ये तो पता था कि इसका भाई बेला से जुनूनी मोहब्बत करता है, लेकिन इस कदर जुनूनी मोहब्बत होगी इसका अंदाज़ा नहीं था उसे। अब बेला की टेंशन होने लगी थी। तुम कैसे इस लड़के को खुद को छूने दे सकती हो? कैसे? आखिर उसे दीवार से पिन किए उसे जबड़े से दबोचे बोला। आखिर की गिरफ्त मजबूत होने की वजह से बेला के जबड़े दर्द करने लगे थे। आखिर छोड़ो मुझे। बेला अपने आप को छुड़ाने की नाकाम कोशिश करते हुए मुश्किल से बोली। इससे सही से बोला भी नहीं जा रहा था। मैंने बोला था ना इस लड़के से दूर रहना, तो क्यों क्यों तुम इसके पास गई? क्यों तुमने उसे खुद को छूने दिया? क्यों बेला, क्यों? आखिर गुस्से से पागल हो रहा था। इसका गुस्सा कम होने का नाम नहीं ले रहा था। आखिर छोड़ो मुझे। बेला अपना पूरा जोर लगाए आगे को खुद से दूर किए गुस्से से इसकी जानिब देखने लगी। तुम्हारे इस क्यों का जवाब मैं क्यों दूँ? लगते क्या हो तुम मेरे? बेला चीखते हुए बोली। क्यों तुम्हें मेरा किसी से बात करना नहीं पसंद? क्यों तुम किसी को मेरे साथ नहीं देख सकते? इस क्यों का जवाब है तुम्हारे पास। तुम जो भी करो वो सही, लेकिन बेला जो करे वो गलत। तुम अपनी गर्लफ्रेंड को वापस ले आए वो ठीक है, लेकिन अगर बेला ने किसी और से ज़रा हंसकर बात क्या कर ली वो गलत है। आखिर तुम चाहते क्या हो? बेला चिल्लाती हुई दीवार के साथ लगे फूट फूट कर रोने लगी। गुड़िया रोना मत। तुम जानती हो मैं तुम्हारे आंखों में आंसू नहीं देख सकता। आखिर बेला की आंखों में आंसू देखे तड़प कर इसकी जाने बढ़ा।
اس کی آنکھوں سے آنسو صاف کرنے لگا۔ پیچھے ہٹو، آنکھوں میں آنسو لانے والا آنکھوں سے آنسو صاف کرتے ہوئے اچھا نہیں لگتا۔ بیلا اسے خود سے دور کیے بولی۔ بیلا کا یوں بار بار خود سے دور کرنا عابد کو اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ گڑیا میں کچھ کہہ نہیں رہا، اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم مجھے خود سے دور کرو۔ تم مجھے میری اجازت کے بنا خود سے دور نہیں کر سکتی، سمجھی تم؟ آگر اس کے بالوں سے پکڑے اس کا چہرہ اپنے مقابل کیے، اس کے چہرے کے نقوش کو باریکی سے دیکھنے لگا۔ کیوں نہ تمہیں خود سے دور کروں؟ آخر تم میرے لگتے کیا ہو؟ ہم دونوں کے بیچ ایسا کوئی رشتہ نہیں جس کی بنا پر تم مجھے چھو سکو۔ اگر باقی لوگ مجھے نہیں چھو سکتے تو تم بھی مجھے نہیں چھو سکتے، سمجھے تم؟ بیلا آگر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی بولی، تم میری ملکیت ہو، میں جب چاہوں تمہیں چھو سکتا ہوں، لیکن اگر کوئی دوسرا تمہیں دیکھنے کی بھی ہمت کرے گا تو اس کا نام و نشان اس دنیا سے مٹا دوں گا۔ آگر بیلا کے اس قدر قریب تھا کہ دونوں کی سانسیں ایک دوسرے کے چہرے کو چھو رہی تھیں۔ مسٹر آگر، صرف منہ سے کہہ دینے سے کسی کی ملکیت نہیں بن جاتی، اس کے لیے نکاح ضروری ہوتا ہے۔ کیا تم مجھ سے نکاح کرو گے؟ آگر بیلا کی بات سنے 2 قدم پیچھے ہوا۔ بیلا کی آنکھ سے ایک آنسو نیچے گرا۔ کیوں ہمت نہیں ہے؟ میں اچھے سے جانتی ہوں تم ایسا ہی کرو گے۔ اگلی بار مجھ پر حق جمانے کی کوشش بھی کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ میری زندگی میں دخل اندازی کرنا بند کر دو۔ میرے بارے میں سوچنے کے لیے ابھی میرے ماں باپ اور میرا بھائی زندہ ہے، اور یقین مانو انہیں تم سے زیادہ میری فکر ہے۔ اپنی یہ جھوٹ کی فکر دکھانا بند کر دو اور مہربانی ہوگی مجھے سکون سے میری زندگی گزارنے دو۔ بیلا کہ وہاں سے جانے لگی تھی کہ آگر نے اسے بازوؤں سے پکڑ کر زور سے اپنی طرف کھینچا۔ بیلا ٹوٹی ہوئی ڈال کی طرح آگر کے سینے سے جا لگی۔ تم نکاح کرنا چاہتی ہو تو ٹھیک ہے، ابھی اس وقت ہمارا نکاح ہوگا۔ آگر بیلا کی آنکھوں میں دیکھے اسے بازوؤں سے گھسیٹتے ہوئے کمرے سے باہر لے آیا۔ آگر یہ کیا کر رہے ہو؟ چھوڑو مجھے! بیلا اپنے آپ کو چھڑاتے ہوئے چلا رہی تھی۔ بیلا کی چیخ و پکار سن کر سب ان کی جانب متوجہ ہوئے۔ آرس جلدی سے مولوی بلاؤ، ابھی اس وقت میرا اور بیلا کا نکاح ہوگا۔ آگر کی بات سنے سب صدمے میں چلے گئے۔ بھائی یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ ایسے کام یوں اچانک نہیں ہوتے، پہلے ہمیں گھر بتانا ہوگا۔ میرا بھی یہی چاہتی تھی، لیکن جس طریقے سے یہ سب ہو رہا ایسا ہرگز نہیں چاہتی تھی۔ آگر یوں اچانک نکاح؟ دیکھو گھر چلتے ہیں، آرام سے بیٹھ کر بات کرتے ہیں، بڑوں کو بھی اس بات کا پتہ ہونا چاہیے، ایسے کام بڑوں کے بنا نہیں کیے جاتے۔ بیلا آنسوؤں سے بھری نظروں سے ایرا کی جانب مدد بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ یہ سچ تھا، بیلا بھی آگر سے نکاح کرنا چاہتی تھی، لیکن اس طرح اپنے ماں باپ اور بھائی کے بنا وہ ہرگز یہ نکاح نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں نے جو بولا ہے وہ کرو، یہ نکاح ابھی کے ابھی ہوگا، جلدی سے مولوی کا انتظام کرو۔ اگر تم سے یہ کام نہیں ہوتا تو بتا دو، میں کسی اور سے کروا لیتا ہوں۔ نہ چاہتے ہوئے بھی آرس کو اس کی بات ماننی پڑی۔ آگر تم ایسا نہیں کر سکتے، تم تو مجھ سے محبت کرتے ہو، تم کیسے بیلا سے شادی کر سکتے ہو؟ پلیز ایسا مت کرو۔ کیارا کے پیروں کے نیچے سے جیسے زمین ہی کھسک گئی تھی۔ آگر تم میرے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتے، چھوڑو مجھے۔ بیلا اپنا ہاتھ آگر کی مضبوط گرفت سے چھڑانے کی کوشش کرتے ہوئے بولی، تم میری ملکیت ہو، تم پر صرف میرا حق ہے، اور آج نکاح کر کے میں تم پر اپنی مہر بھی لگا دوں گا۔ تو کیا اب تم مجھ پر اپنی مہر لگانے کے لیے زبردستی کرو گے؟ بیلا حیرانگی سے آگر کی جانب دیکھنے لگی۔ ہاں کچھ ایسا ہی سمجھ لو۔ میں کوئی چیز یا تمہارا کوئی بزنس پروجیکٹ نہیں جسے تم حاصل کرنے کے لیے یہ سب کر رہے ہو، میں جیتی جاگتی انسان ہوں۔ بیلا آگر کا پاگل پن دیکھتے ہوئے بھڑک اٹھی تھی۔ آگر بس اس پر اپنی مہر لگا کر اس کے وجود پر، اس کی زندگی پہ اپنی حکومت کرنا چاہتا تھا۔ بھائی آپ جذباتی ہو کر یہ سب کر رہے ہیں، دیکھیں ہم گھر چلتے ہیں، سب مل کر اس بار بات کریں گے۔ مجھے کسی سے کوئی بات نہیں کرنی، میں نے جو کہہ دیا اب بس وہی ہوگا۔ ایرا مزید اپنے بھائی کو کچھ سمجھاتی آرس مولوی کے ساتھ ہال میں داخل ہوا۔ چلیں مولوی صاحب جلدی سے نکاح شروع کریں۔ آگر بیلا کو لیے صوفے پر بیٹھا۔ مولوی ہال پر ایک نظر ڈالے آگر کے ساتھ بیٹھی بیلا کو روتا ہوا دیکھ تھوڑا پریشان ہوا تھا۔ بیٹا مجھے لگتا ہے لڑکی اس نکاح کے لیے تیار نہیں ہے، جب تک لڑکی راضی نہیں ہو جاتی تب تک نکاح نہیں ہو سکتا۔ نکاح تو آج ہی ہوگا، چاہے لڑکی راضی ہو یا نہ ہو۔ آگر روتی ہوئی بیلا پر ایک نظر ڈالے بولا، بیٹا مجھے معاف کیجیے گا، میں زبردستی کسی کا نکاح نہیں پڑھا سکتا۔ مولوی کی بات سن کر وہاں موجود سب کے وجود میں سکون اترا تھا۔ بیلا نے سکون کا سانس لیا۔ آگر مولوی کو دیکھتے ہوئے ایک سیکنڈ ضائع کیے بنا اپنی جگہ سے اٹھا اور کاؤنٹر سے شراب کی بوتل لیے اسے آدھا توڑے وہ واپس مولوی کی جانب بڑھا۔ اب تمہارا کیا خیال ہے؟
आखिर बोतल का आधा हिस्सा मौलवी की गर्दन पर रखे चिल्लाया। मौलवी के तो पसीने छूट गए थे। बाकी सब भी आखिर को खड़े देख रहे थे। भाई आप ये क्या कर रहे हैं? एरा रोने को थी। अब उसे अपने किए पर पछतावा हो रहा था। आरएस मौलवी को छुड़ाने के लिए आगे बढ़ा था कि आगे उसे भी वहीं रोक गया। बेटा मेहरबानी करके इसे नीचे कर लो, मैं पढ़ाता हूँ निकाह। मौलवी कांपते हुए बोला। आखिर मौलवी को छोड़े वापस बेला के साथ जाकर बैठ गया। बेला को आज आखिर पर इंतहा का गुस्सा आ रहा था। बेला अरसलान अफंदी, आपका निकाह आखिर सालार अफंदी से किया जाता है, क्या आपको ये निकाह कबूल है? मौलवी रोती हुई बेला की जानिब देखे बोला। बेला बेबस हुई एरा की जानिब देखने लगी। आज एरा भी कुछ नहीं कर सकती थी, वो भी आज बेबस थी। आज इसके सामने इसका भाई नहीं, एक सरफिरा आशिक मौजूद था जो किसी की बात मानने के लिए तैयार ही नहीं था। बेटी क्या आपको ये निकाह कबूल है? बेला की खामोशी को देखते हुए मौलवी दूसरी बार बोला था। इससे पहले बेला कुछ बोलती आगे बोला। बेला अगर तुमने ना किया तो अभी के अभी मैं ख़ुद को ख़त्म कर लूँगा। आखिर बोतल का टुकड़ा अपनी गर्दन पर रखे बोला। बेला के साथ आरएस, एरा और कियारा भी चौंक गई। नहीं भाई आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। एरा एकदम से तड़प गई। आखिर तुम पागल हो गए हो, पीछे हटाओ उसे। बेला चिल्लाई। नहीं, पहले तुम हाँ बोलो। आखिर बोतल को मज़ीद अपनी गर्दन पर दबाते हुए बोला। मुझे कबूल है, कबूल है, कबूल है। बेला हड़बड़ाते आखिर की जानिब देखे बोली। मौलवी आखिर से पूछे निकाहनामे पर इनके साइन दिए वहाँ से चला गया। मौलवी अभी बाहर निकला ही था कि सालार और आमिर भागते हुए अंदर दाखिल हुए। बेला अपने भाई को देख भागते हुए इसके गले लगी, रोने लगी। अंकल आपने आने में देर कर दी, निकाह हो गया है। आरएस सालार के पास जाते हुए सरगोशी में बोला। आरएस ने ही दोनों को फ़ोन करके यहाँ बुलाया था। आखिर ये क्या पागलपन था? सालार आखिर को इतना रिलैक्स खड़ा देख चिल्लाए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन से ज़बरदस्ती करने की? आमिर गुस्से से आग बगोला हुए आगे के गिरबान से पकड़े थाड़ा। अपनी चीज़ को हासिल करने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। आगे रिलैक्स हुआ बोला। वो कोई चीज़ नहीं, बहन है मेरी, समझे तुम? बहन है मेरी। आमिर आखिर के चेहरे पर मुक्के बरसाए चीखा। आखिर चुप खड़ा आमिर से मार खा रहा था। ना इससे कुछ कह रहा था और ना ही इसे रोक रहा था। अगर इसकी बहन के साथ ऐसा कुछ होता तो शायद वो भी ऐसा ही कुछ करता, इसलिए आखिर बिल्कुल खामोश खड़ा था। आखिर के नाक और होंठ से खून बहने लगा था, लेकिन आमिर अभी भी उसे मार रहा था। सालार का दिल भी इसके साथ कुछ ऐसा ही करने को कर रहा था। जितना गुस्सा आज इन्हें आखिर पर था, शायद वो ऐसा कर भी गुजरते। आमिर बस करो। आरएस उसे घसीटता हुआ आखिर से दूर ले गया। आखिर आज जो तुमने किया है इसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा। सालार एक नागवार नज़र इस पर डाले वहाँ से निकल गए। वो अब कुछ कर भी नहीं सकते थे। वो निकाह पढ़वाने आए थे, लेकिन इन्हें आने में देरी हो गई थी। चलो बेला। आमिर एक नागवार नज़र आखिर पर डाले बेला का हाथ पकड़े वहाँ से जाने लगा था कि अचानक से रुक गया। आमिर ने पीछे मुड़कर देखा तो आखिर बेला को बाजुओं से पकड़े पड़ा था। बेला कहीं नहीं जाएगी, वो अब बीवी है मेरी। मैं जहाँ रहूँगा बेला मेरे साथ ही रहेगी। कुछ नहीं लगती वो तुम्हारी, समझे तुम? कुछ नहीं। आमिर बेला का बाजू छुड़ाते हुए चीखा। शायद तुम भूल रहे हो, अभी अभी हमारा निकाह हुआ है। कानूनी तौर पर बेला मेरी बीवी है। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। आमिर एक बार फिर आगे की जानिब लपका। आमिर कुछ करता, बेला आगे की आगे दीवार बनकर खड़ी हो गई। जारी है। मस्ट सब्सक्राइब आवर चैनल, लाइक, कमेंट एंड शेयर। उर्दू नावल्स प्लेटफॉर्म, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें। मुकम्मल नावल, मोस्ट रोमांटिक नावल कबूल है इश्क तेरा, असकलम परी खान, एपिसोड 10। प्लीज़ मेरे साथ ऐसा मत करो, मुझे सिर्फ चंद दिन दे दो। मैं तुम्हें यकीन दिलाती हूँ इन चंद दिनों में मैं बेला को आगे की ज़िंदगी से हमेशा के लिए निकाल दूँगी। नहीं प्लीज़ ऐसा मत करना, उसे कुछ मत करना, सिर्फ चंद दिन दे दो। कियारा फ़ोन पर गिड़गिड़ा रही थी। तुम्हारा बहुत शुक्रिया, प्लीज़ उसे कुछ मत करना। जैसा तुम कहोगे मैं बिल्कुल वैसा ही करूँगी। मैं आखिर के दिल में बेला के लिए इतनी नफ़रत पैदा कर दूँगी कि वो बेला को देखना तो दूर की बात है, वो इसका नाम भी सुनना गवारा नहीं करेगा। कियारा फ़ोन पर मौजूद इंसान की हिदायत सुने फ़ोन रख के। बेला तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, तुमने मेरा सारा प्लान ख़राब कर दिया। अब मुझे दोबारा से आखिर को अपनी तरफ मुतवज्जो करना पड़ेगा। कियारा कुछ सोचते हुए बोली। आखिर मुझे घर जाना है। बेला तकरीबन पिछले 15 मिनट से दरवाज़े के साथ लगी उसे खोलने की कोशिश कर रही थी। दरवाज़ा था कि खोलने का नाम ही नहीं ले रहा था।
गुड़िया मेरी जान, ये दरवाज़ा ऐसे नहीं खुलेगा, तुम्हारी सारी कोशिश बेकार है, फ़िज़ूल में खुद को तकाना बंद करो। आखिर बेला की कमर के पीछे खड़ा इसके कान में सरगोशी किए बोला। बेला को चौंका आ गया। बेला इसकी गर्म सांसें अपने कान पर महसूस किए एकदम से पलटी। दोनों के बीच फासला ना होने के बराबर था। आगे के इतने नज़दीक होने पर बेला की सांसें एकदम से तेज़ हो गई। आज तक आगे इसके इतने करीब नहीं आया था और ना ही कभी बेला की सांसें कभी इतनी तेज़ हुई थी। क्या हुआ, तुम्हारी सांसें इतनी क्यों तेज़ हो रही हैं? आखिर फिक्रमंद हुआ। बेला की आंखों में देखने लगा। गुड़िया तुम ठीक तो हो? हाँ मैं ठीक हूँ। बेला खुद को संभाले आगिर के सीने पर हाथ रखे उसे खुद से दूर किए मुश्किल से बोली। बेला का यूँ आगिर को खुद से दूर करना आगिर को गुस्सा दिला गया। आगिर की आंखें एक सेकंड में गुस्से से सुर्ख हो गईं। कितनी बार मैंने तुमसे बोला है मुझे खुद से दूर मत किया करो, तुम्हें मेरी बात एक बार में समझ नहीं आती? आखिर बेला की कमर को एक हाथ से मजबूती से जकड़े दूसरा हाथ इसके बालों में फंसाए इसका चेहरा अपने चेहरे के मुकाबिल किए इतनी ज़ोर से धाड़ा कि बेला को लगा इसके कान के पर्दे अभी फट जाएंगे। बेला खौफ के मारे ज़ोर से अपनी आंखें बंद कर गई। खौफ से इसकी टांगें कांपने लगी थी। बेला बचपन से आखिर के साथ होने के बावजूद आज तक इसके गुस्से को नहीं जान पाई थी। जो बात सबको मामूली सी लगती थी, आगे कभी कभार इन बातों पर भी इतना गुस्सा करता था। जब तक मैं खुद न चाहूँ तो मुझे खुद से दूर नहीं कर सकती और ना तो मुझसे दूर हो सकती हो मेरी इजाज़त के बिना, समझी तुम? आखिर इसकी बंद आंखों को देख इसके मज़ीद करीब हुए सरगोशी में बोले। बेला के चेहरे पर अपनी गर्म सांसें छोड़ने लगा। आखिर को अपने इतने करीब महसूस किए बेला अपनी आंखें मज़ीद ज़ोर से बंद कर गई। आखिर बेला के आधे खुले सुर्ख होंठों को अपनी उंगलियों से छूते बेला को मज़ीद खौफ में मुब्तला कर दिया। बेला के दिल की धड़कन नॉर्मल से ज़्यादा तेज़ चल रही थी। बेला की हालत ख़राब होते देख आगिर खिलाफ मुस्कुराए। बेला जो अभी थोड़ी देर पहले इसके सामने शेरनी बनी खड़ी थी, अब एक डरी सहमी बिल्ली की तरह खौफ से कांप रही थी। आगिर की जानिब से कोई हलचल महसूस न किए बेला अपनी आंखें खोले आगिर को देखने लगी। आखिर जो पहले से ही बेला को देख रहा था उसे देख हल्का सा मुस्कुराए उसे कोई सोचने समझने का मौका दिए बगैर इसके निचले होंठ को अपने होंठों की दस्तरस में ले गया। आगिर के अचानक हमले पर बेला की आंखें हैरत से फैल गई। आगिर बेला के होंठों पर अपनी पहले शिद्दत उठाए पीछे ही हुआ था कि बेला को एकदम से हिचकी शुरू हो गई। बेला आंखें घुमाए बड़ी बड़ी हिचकियाँ भरने लगी। इसकी हालत देख आगिर का कहा पूरे कमरे में गूंजा। लगता है तुम्हारे होंठों को मेरा दूर जाना अच्छा नहीं लगा। आगिर एक बार फिर इसके करीब हुए इसके होंठों पर झुकने ही वाला था कि बेला अपने दोनों होंठ अंदर की तरफ मोड़ गई। आगिर की सख्त गिरफ्त की वजह से वो उससे दूर तो नहीं हो सकती थी, इसलिए आगिर से बचने के लिए उसे यही तरीका सही लगा। तुम्हें क्या लगता है ऐसा करने से तुम बच जाओगी? तो ये तुम्हारी भूल है गुड़िया। तुमने मेरे अंदर सोए हुए जज्बातों को उजागर किया है। जानबूझकर तुमने मुझे अपनी तरफ मुतवज्जो किया है। मैंने जितना तुमसे दूर जाने की कोशिश की है तुमने मुझे इतना ही अपने करीब किया है। तुम अभी मेरे पागलपन को जानती नहीं हो। तुम नहीं जानती कि मैं तुम्हें लेकर मैं कितना पागल हूँ। छूना तो दूर की बात है, कोई तुम्हें आँख उठाकर भी देखता है तो मेरा खून खौलने लगता है। आगिर बेला के चेहरे के एक एक नकुश को अपने हाथों की उंगलियों से छूते हुए बोले जा रहा था। बेला अपने होंठ ऐसे ही अंदर किए बुत बनी आगिर की बातें सुन रही थी। तुम मेरा जुनून हो और मैं नहीं जानता ये जुनून मुझे किस हद तक ले जाएगा। ये कम होने की बजाय मज़ीद बढ़ता ही चला जा रहा है। तुम नहीं हो, तुम अब सिर्फ मेरी हो। तुम पर तुम्हारा नहीं अब सिर्फ मेरा हक है। आगिर की बातें न जाने क्यों बेला को खौफ में मुब्तला कर रही थी। आगिर बेला को गर्दन से पकड़े उसकी गर्दन में अपना चेहरा छुपाए गहरे गहरे सांस भरते हुए इसकी खुशबू को अपने अंदर उतार रहा था। बेला गर्म सांसों की तपिश महसूस किए गहरा सांस भरे अपना चेहरा दूसरी तरफ फेरे अपनी आंखें बंद किए अपना सांस रोक गई। मोबाइल की आवाज़ सुनकर आगिर होश में वापस आया, बेला से दूर हुआ। आगिर के दूर होने पर बेला ने अपना सांस बाहर खारिज किया। चंद ही घंटों में आगिर ने इसकी हालत बुरी कर दी थी। बेला को अब सच में अपनी फ़िक्र होने लगी थी। आगिर बेला को देखते हुए बेड पर पड़े फ़ोन को यस किए कान से लगा गया। फ़ोन पर मौजूद अफराद की बात सुने पल भर में आगिर के चेहरे पर बेशुमार बल पड़े थे। बेला हैरानगी से इसके चेहरे की तरफ ही देख रही थी। इन चंद घंटों में बेला ने अभी आगे के निचले होंठ को गौर से देखा था। इसके भाई की मार की वजह से इसके नीचे वाला होंठ फटा हुआ था और साइड पे अभी तक खून लगा हुआ था।
आगे ने उसे होश कब आने दिया था कि वो उसकी चोट को देख सकती। आगे बिना कोई बात किए फ़ोन कान से हटाए, कॉल काटे, बेड पर पड़ा हुआ अपना कोट उठाए, बेला के कंधों पर डाले उसे बाजुओं से पकड़कर अपने साथ ले जाने लगा। आखिर हम कहाँ जा रहे हैं? बेला हाई हील पहने आगे के पीछे घसीटती हुई जा रही थी। उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि ये सब हो क्या रहा है। आगे बेला को फ्रंट सीट पर बिठाया, खुद ड्राइविंग सीट पर बैठे, डोर लॉक किए, गाड़ी स्टार्ट करने लगा। आगे क्या तुम मुझे बताना पसंद करोगे कि अब हम कहाँ जा रहे हैं? बेला आगे की खामोशी से तंग आई, एकदम से चिल्लाई। आगे न चाहते हुए भी मुस्कुरा गया। हम घर जा रहे हैं आगे, बेला के गुस्से से सुर्ख हुए चेहरे की जानिब देख के बोला। वाकई में तुम मुझे मेरे घर छोड़ने जा रहे हो? बेला अपना गुस्सा भुलाए खुश हुई। आगे को इसकी ये खुशी एक आंख न भाई। हम तुम्हारे घर नहीं मेरे घर जा रहे हैं, और अपने घर जाने का ख्याल अब तुम अपने दिमाग से निकाल दो। बेला की खुशी एक मिनट में गायब हुई थी। हॉल में भी आगिर ने उसे आमिर के साथ नहीं जाने दिया था। अरसलान, हम आगिर की इस हरकत से बहुत शर्मिंदा हैं। सलार और कुलसूम, अरसलान, नादिया और आमिर के सामने सर झुकाए बैठे थे। जिस बेटे पर इन्हें इतना मान और गुरूर था, आज इस बेटे ने ही इनका सर झुका दिया था। ताया जान, शर्मिंदा होने से क्या होगा? मेरी बहन की ज़िंदगी तो तबाह कर दी आपके बेटे ने। ज़बरदस्ती निकाह किया है इसने मेरी बहन से। आप जानते हैं ऐसा करना कितना बड़ा क्राइम है। आमिर गुस्से से चिल्लाया। आमिर, कैसे बात कर रहे हो अपने ताया से? अरसलान गुस्से से आमिर की तरफ देखते हुए इस पर चिल्लाई। अरसलान, कुछ मत कहो उसे, इसका गुस्सा जायज़ है। अगर इसकी जगह मैं होता तो मैं भी शायद ऐसा ही करता। बेला इसकी बहन है, इसका गुस्सा जायज़ है। एरा और आरस खामोश बैठे हुए थे। कियारा भी परेशानी से मेन डोर की जानिब बार बार देख रही थी। सबको आगिर और बेला का इंतज़ार था। आगिर और बेला जैसे ही घर के अंदर दाखिल हुए, बेला हॉल में अपने वालिदैन और भाई को देखते हुए आगिर से अपना हाथ छुड़ाए इनकी जाने पड़ी। बेला की इस हरकत पर आगिर को इंतहा का गुस्सा आया था, लेकिन आगिर खामोश रहा। वो बिगड़े हुए माहौल को मज़ीद बिगड़ाना नहीं चाहता था। बेला नादिया के गले लगे फूट फूट कर रोने लगी। बेला को रोते हुए देख एरा की आंखें भी नम हो गई थी। ज़िंदगी में पहली बार उसे अपने भाई पर इतना गुस्सा आ रहा था। आखिर तुम ठीक तो हो? तुम्हें पता है मैं कितना परेशान हो गई थी। कियारा भागते हुए आगिर के गले लगे मसनूई फिक्र दिखाए पड़ी। कियारा को आगिर के गले लगे देख सबके गुस्से में और इजाफा हो गया था। आमिर गुस्से से अपने हाथ की मिट्टियाँ भींच गया। फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। आगिर आराम से कियारा को खुद से अलग किए बोला। कियारा के साथ आगिर का रवैया देख एरा का दिमाग ही गुस्से से घूम गया। चलो निकलो यहाँ से, अब तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं। एरा गुस्से से लाल पीली हुई। कियारा का बाजू सख्ती से पकड़े उसे मेन डोर की जानिब ले जाने लगी। कियारा कहीं नहीं जाएगी। कियारा को बाहर ले जाते हुए एरा के कदम नहीं रुक गए। सब हैरानगी से आगे की जानिब देखने लगे। बेला भी नादिया के कंधे से सर उठाए हैरत से आगे की जानिब देखने लगी। भाई, आप जानते हैं आप क्या कह रहे हैं? हाँ, मैं अच्छे से जानता हूँ मैं क्या कह रहा हूँ। कियारा इस घर से कहीं नहीं जाएगी। कियारा के लबों पर मुस्कुराहट बिखरी। क्या हम जान सकते हैं कि कियारा क्यों नहीं इस घर से जा सकती? जहाँ तक हमें पता है कियारा तुमसे शादी के लिए यहाँ आई थी। अब जबकि तुम्हारी शादी बेला से हो गई है तो कियारा का यहाँ क्या काम? सलार रोकदार आवाज़ में बोले। मैंने कह दिया कि कियारा इसी घर में रहेगी तो इसी घर में रहेगी। मैं मज़ीद इस मामले पे बहस नहीं करना चाहता। वाह भाई, आपको इस बारे में बात नहीं करनी तो ठीक है, नहीं करते हैं। बेला के बारे में बात करते हैं। अगर कियारा को आप अपनी ज़िंदगी से नहीं निकालना चाहते तो बेला को क्यों अपनी ज़िंदगी में शामिल किया? एरा आगिर के सामने खड़ी इसकी आंखों में आंखें डाले बोली। अभी के अभी बेला को तलाक दो और मेरी बहन को आज़ाद करो। आमिर दान पीसते हुए बोला। मैं बेला को तलाक नहीं दूँगा। आगे तुम चाहते क्या हो? क्यों हमें बदनाम करने पर तुले हो? इस पर कुलसूम गुस्से से चिल्लाई। बेला जो कब से बुत बनी आगे को देख रही थी, अचानक से सोफे पर जा गिरी। बेला मेरी बच्ची। नादिया बेला को देख के चीखी। सब आगे को छोड़े बेला की तरफ मुतवज्जो हुए। गुड़िया। आगे बेला की जानिब भागा था कि आमिर उसे बाजुओं से पकड़े रोक गया। हिम्मत भी मत करना मेरी बहन के पास जाने की। आगे गुस्से से आमिर की जानिब देखे, इसके हाथ से अपना बाजू छुड़ाए बेला की जानिब बढ़ा। गुड़िया, आरएस डॉक्टर को कॉल करो। आगे बेला को अपनी गोद में उठाए अपने कमरे की जानिब बढ़ा। बाकी सब लोग भी इसके पीछे पीछे भागे। अब ये क्या नया तमाशा है इस बेला मैडम का? खैर मुझे क्या, आगे अभी मेरे साथ है, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। अब देखना बेला मैडम,
मैं कैसे तुम्हें आगे की ज़िंदगी से आउट और पुट इन होती हूँ। कियारा वहीं खड़ी मुस्कुरा गई। डॉक्टर साहब, क्या हुआ है मेरी गुड़िया को? आगे घबराते हुए बोला। सबकी नज़रें डॉक्टर पर ही थी। स्ट्रेस ज़्यादा लेने की वजह से ये बेहोश हो गई है, इनका बीपी लो हो गया है। मैं इंजेक्शन लगा देता हूँ, साथ कुछ मेडिसिन लिख कर देता हूँ, आप वो मंगवा लें। डॉक्टर बेला को इंजेक्शन लगाए कुछ दवाई लिख के चला गया। RS ने बाहर तक छोड़ने गया था। मेरी बच्ची एक ही दिन में देखो कितनी मुरझा गई है। नादिया बेला की पेशानी पर प्यार दिए रोने लगी। बेला अभी की अभी हमारे साथ बढ़ जाएगी। आमिर बेला को उठाने के लिए आगे बढ़ा। बेला कहीं नहीं जाएगी, वो इस घर में ही रहेगी। आखिर आमिर को बाजुओं से पकड़े रोक गया। बेला हमारे साथ ही जाएगी। बेला अब सिर्फ तुम्हारी बहन ही नहीं मेरी बीवी है, समझे तो? आखिर आमिर को गुस्से से दूर धकेले बोला, तुम दोनों लड़ना बंद करो। बेला बेटी को ठीक हो जाने दो, जो वो कहेगी वही होगा। सालार दोनों को आपस में झगड़ता देख धीमी आवाज़ में चिल्लाई, चलो अब सब बाहर चलो। बेला बेटी को थोड़ा आराम करने दो। सब सालार के पीछे पीछे बाहर चले गए। नादिया बेला पर एक आखिरी नज़र डाले बाहर की जाने लगी। सुबह से शाम हो गई थी, लेकिन बेला को अभी तक होश नहीं आया था। रात के तकरीबन 2 बज रहे थे। आकर खामोशी से अपने रूम में दाखिल हुआ। बेला के बिल्कुल साथ आकर लेट गया। बेला बिल्कुल सीधी लेटी गहरी नींद में थी। बाल इसे एक साइड पे तकिए पर फैले हुए थे। कुछ बाल इसकी पेशानी पे से चिपके हुए थे। आखिर इसके मज़ीद नज़दीक हुए, इसकी पेशानी से बाल हटाए, इसके चेहरे के एक एक नक्श को बहुत बारीकी से देखने लगा। मैं कैसे नहीं अपनी मोहब्बत, अपने जुनून को पहचान पाया। जो सुकून मैं किसी और में ढूंढ रहा था, वो तो हर लम्हा हर वक्त मेरे साथ था। मेरी गुड़िया, मेरा जुनून, मेरा इश्क, मेरी ज़िंदगी, सब कुछ तुम हो। पता नहीं कब मुझे तुमसे इतनी जुनूनी मोहब्बत हो गई कि कोई तुम्हारी तरफ मुस्कुरा भी देखता है तो दिल करता है जान ले लो इस इंसान की। आगे बेला के चेहरे पर झुके इसके होंठों को अपने हाथ के अंगूठे से सहलाए, सरगोशी में बोले। सोई हुई बेला के चेहरे पर एक नज़र डाले, नरमी से इसके होंठों पर अपने होंठ रखे पीछे हुआ और बेला को कमर से पकड़े अपने सीने से लगाए सुकून से आंखें बंद कर दिया। उसे किसी के फ़ैसले से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, चाहे बेला का जो भी फ़ैसला हो। उसे तो हर हाल में बस अपनी गुड़िया चाहिए थी, चाहे इसके लिए उसे बेला से ज़बरदस्ती ही क्यों ना करनी पड़े। वो उसे अब कभी भी खुद से दूर नहीं करना चाहता था। जारी है। मस्ट सब्सक्राइब आवर चैनल, लाइक, कमेंट एंड शेयर।